Which of the following behavioral theories is shown in the image? सबसे नीचे इमीडिएट साइकोलॉजिकल नीड्स है, फिर उसके ऊपर सेफ्टी है, एक ट्राइंगल के अंदर है, फिर उसके ऊपर लव, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, फिर एस्टीम और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ये एज अ ग्रोथ ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स होती है जैसे जैसे चाइल्ड जो है वो ग्रो करता है. ओके, नाउ चाइल्ड साइकोलॉजिकल थ्योरीज कैन बी क्लासिफाइड एज साइकोडायनामिक थ्योरी और बिहेवियरल थ्योरी. Hierarchy of needs is one of the behavioral theory that is proposed by Abraham Maslow in the year 1954. किसने किया था? Abraham Maslow ने in the year 1954. Next, tripod effect is seen in which grasp? Tripod effect is seen in modified pen grasp. ठीक है, modified pen grasp के अंदर tripod effect देखा जाता है. The thumb and index fingers are not touching, thereby creating a tripod effect with the middle finger placed along the shank of the instrument. The tripod effect provides stability to the grasp and facilitates the ease of control on the instrument. Medication for Neisseria gonorrhoeae is what? ठीक है, medication for Neisseria gonorrhoeae is by ceftriaxone plus azithromycin plus doxycycline. ठीक है, सेफ्ट्राइजोन देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, ये तीनों दे सकते हैं. अमोक्सिसिलिन नहीं देंगे, रिफैम्पिसिन नहीं देंगे, कार्बामेपेजिपिन नहीं देंगे. ठीक है. Next, opening of glottis is controlled by which muscle? Opening of glottis is controlled by posterior cricoarachnoid muscle. Posterior cricoarachnoid muscle. ठीक है, opening for glottis is posterior cricoarachnoid muscle और closing of glottis के लिए lateral cricoarachnoid, transverse cricoarachnoid, interarytenoid और cricothyroid muscles. ठीक है, lateral cricoarachnoid, transverse cricoarachnoid, इंटर एरिटेनॉइड और क्रिकोथायरॉइड मसल्स क्लोजिंग के लिए होते हैं और जो पोस्टीरियर वाला है वो ओपनिंग के लिए. नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू सेक्स पिलाई इज नोन एज व्हाट? थ्रू सेक्स पिलाई हमारे पास ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज कॉन्जुगेशन. व्हाट इज दिस नोन एज? इट इज नोन एज कॉन्जुगेशन. पिलाई आर थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ बैक्टीरिया. दे फैसिलिटेट adherence to surfaces below and allow the information of biofilms that can be fundamental factor of virulence of a mediating adherence to animal tissues. Conjugative villi allow the transfer of DNA. Conjugative villi allow the transfer of DNA between the bacteria in the process of bacterial conjugation. They are sometimes called as sex villi. In analogy to sexual reproduction because they allow the exchange of genes by a formation of mating pairs. This process of bacterial conjugation serves to transfer the genetic information from donor cell to another recipient, involving plasmids and specialized surface structures with specific functions such as villi. Next, von Kropf fibers type of collagen is seen in what? देखो, von Kropf fibers is seen in type 3 collagen. किसके अंदर? टाइप 3 कोलेजन में देखा जाता है. द कोलेजिनस फाइबर्स ऑफ वॉन क्रॉफ पास फ्रॉम द डेंटिन मैट्रिक्स बिटवीन द ओडोंटोब्लास्ट इनटू द डेंटिनल पल्प. कहाँ से पास कर रहे हैं? डेंटिन मैट्रिक्स से बिटवीन ओडोंटोब्लास्ट इनटू द डेंटल पल्प. द टाइप 3 कोलेजन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ इंटर ओडोंटोप्लास्टिक फाइबर्स और वॉन क्रॉफ फाइबर्स. नेक्स्ट, द स्पेस बिहाइंड द रेट्रोफेरेंजियल स्पेस इज नोन एज व्हाट एरिया? इट इज नोन एज डेंजर स्पेस एरिया. रेट्रोफेरेंजियल एरिया के पीछे जो स्पेस होता है उसको डेंजर स्पेस बोलते हैं. द डेंजर स्पेस लाइज बिहाइंड द ट्रू रेट्रोफेरेंजियल स्पेस एंड कोर्सेज मोर इन्फीरियरली दैन द ट्रू रेट्रोफेरेंजियल स्पेसेस. ठीक है, ये ज़्यादा इन्फीरियर होता है डेंजर स्पेस, रेट्रोफेरेंजियल स्पेसेस के इन्फीरियर चलता है. रनिंग इनटू द पोस्टीरियर मीडियास्टिनम अंटिल द लेवल ऑफ डायफ्राम. द डेंजर स्पेस कनेक्ट्स द डीप सर्वाइकल स्पेसेस इनटू मीडियास्टिनम. डीप सर्वाइकल स्पेसेस जो हैं वो सीधा मीडियास्टिनम के साथ कनेक्ट कर देता है डेंजर स्पेस. बाउंड्रीज में क्या आता है? सुपीरियरली वी हैव क्लीवस, inferiorly we have posterior mediastinum at the level of diaphragm. Superiorly is clevis, inferiorly is the posterior mediastinum at the level of diaphragm. Anteriorly we have alar fascia and posteriorly we have prevertebral fascia. The connection of danger space to the mediastinum allows for the spread of infections from oral cavity to thoracic cavity. Potential life-threatening complications related to this space infection include mediastinitis and airway obstruction. अगर रेट्रोफेरेंजियल स्पेस इन्वॉल्व हो गया है तो वहाँ से डेंजर स्पेस में कोई भी इन्फेक्शन ईजिली ट्रैवर्स कर सकता है. एक बार डेंजर स्पेस में चला गया तो मीडियास्टिनम तक इन्फेक्ट कर देगा, जिससे कि मीडियास्टिनाइटिस और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है. नेक्स्ट, व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक? Obstructive shock is the condition where the heart has decreased diastolic filling
एंड द कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज्ड। ठीक है, डायस्टॉल में जब रेस्टिंग स्टेज होती है तब फिलिंग डिक्रीज हो जा रही है, जिससे कि फाइनली कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज कर जा रहा है। इसको हम कहते हैं एज अ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। शॉक 4 तरह का होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है, कार्डियोजेनिक हो सकता है, हाइपोवॉल्यूमिक हो सकता है और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है। तो यहाँ पे अगर डिक्रीज फिलिंग हो रही है तो दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। क्योंकि डिक्रीज फिलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जो हमारी वेसल है जो ब्लड लेके आ रही है एट्रियम तक, वो वेसल कहीं ना कहीं से क्लॉग हो चुकी है, कहीं ना कहीं से उसकी जो स्टेनोसिस हो चुकी है, एक हिसाब से बोल सकते हैं उसका जो पाथवे उसकी स्टेनोसिस हो चुकी है। कोई भी रीज़न है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो, प्लाक फॉर्मेशन हो, कोई भी रीज़न हो, उसकी वजह से फिलिंग कम होगी। तो फिलिंग कम होने की वजह से आगे पंप कम होगा, दैट इज अ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। Next question is cortical duplication is seen in which osteomyelitis? Cortical duplication, it is seen in the case of chronic osteomyelitis, proliferative periosteitis. Chronic osteomyelitis, proliferative periosteitis में देखा जाता है। Garay's sclerosing osteomyelitis is a type of chronic osteomyelitis, also called as periostitis ossificans and Garay's sclerosing osteomyelitis. इसको proliferative periosteitis भी बोलते हैं। It is a very rare disease. It mainly affects children and young adult and is associated with low-grade infection, which may be due to dental caries. A radiograph will show localized overgrowth of bone on the outer cortex or at the outer surface of the cortex. Outer surface पे एक localized overgrowth of the bone दिखाई देगी. The mass of the bone, which is supracortical but subperiosteal, is smooth, fairly calcified, and is often described as duplication of the layer of cortical layer of the mandible. ठीक है, द redundant cortical layering of bone, onion skinning appearance is also seen in it. Onion skinning appearance, that is the redundant cortical layering of the bone, is often considered a pathognomic sign that is seen in this chronic osteomyelitis और Garay's osteomyelitis. मतलब बोन के ऊपर जैसे अनियन के पील होते हैं ना, वैसे ही बोन डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, which is termed as cortical duplication of the bone. Next, what could be the cause of midline diastema in this 14-year-old boy and outline the proper treatment plan. 14 साल का बंदा है, उसमें midline diastema का केस आया हुआ है। ठीक है, सो उसमें हाई फ्रेनल अटैचमेंट है, पेपिला जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है इन द फ्रेनम एंड द फ्रेनेक्टोमी इज द ओनली चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, लेट्स गो विद द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ abnormally high frenum. A frenum attachment becomes problematic if the attachment is too low or too close to the marginal gingiva. So now the tension on the frenum will pull the gingival margin away from the tooth. तो दांत जो है वो दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, this condition may be conducive to plaque accumulation and inhibit the proper tooth brushing. Abnormal frenum has been found associated with loss of papilla. It is found associated with recession. It is found associated with persistence of midline diastema, difficulty in brushing, malalignment of teeth, and compromised denture fit or denture retention. तो इसमें ट्रीटमेंट क्या करोगे आप? पेपिला को पेनिट्रेट कर रहा है तो पेपिला को पेनिट्रेट करने वाला जो फ्रेनम है उसको आप फ्रेनेक्टोमी कर दोगे। ठीक है, जो हाई अटैच्ड पेपिला है उसको लो अटैच कर दोगे। उसके बाद ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से दोनों दांतों को पास ले आके फाइनली उसके बाद उसमें एक रिटेनर दे दोगे। ठीक है, परमानेंट रिटेनर दे दोगे। अगर रिटेनर नहीं दोगे तो ये वाली जो कंडीशन होती है मिडलाइन डायस्टीमा वाली, ये बहुत जल्दी रिलैप्स कर जाती है। इट कैन रिलैप्स विद इन 1 डे। 6-7 महीने का जो काम है वो एक दिन में भी रिलैप्स कर सकता है। सो यू हैव टू गिव अ रिटेनर, परमानेंट रिटेनर। नेक्स्ट, यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज एन इंडिकेटर ऑफ व्हाट? Urinary specific gravity, it is an indicator of renal concentrating ability. Alright, specific gravity is an indicator of renal concentrating ability which is measured using refractory or chemical method by the use of urine dipstick method. The physiological range for specific gravity of urine is from 1.003 to 1.030. The specific gravity is increased in concentrated urine and decreased in dilute urine. ठीक है, जितना ज़्यादा यूरिन डाइल्यूट होता जाएगा उतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज कर जाएगी, जितना यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज कर जाएगी। जो रीनल प्लाज्मा क्लियरेंस होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट टाइम। प्लाज्मा क्लियरेंस को कैलकुलेट करते हैं हम बाय CS इज इक्वल टू US, दैट इज यूरिन कंसेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ द यूरिन पर in ml per minute, volume of the urine in ml per minute divided by plasma concentration of the substance, that is equal to the clearance of the substance. Kussmaul's breathing is associated with what? Kussmaul's breathing is associated with metabolic acidosis. ठीक है, Kussmaul's respirations are fast. Their fast
deep breaths that occur in response to metabolic acidosis. Kussmaul's respirations happen when the body tries to remove carbon dioxide and acid from the body quickly by breathing it out. Diabetic ketoacidosis is the most common cause of Kussmaul's respiration. फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है, रैपिड डीप ब्रेथ लेना शुरू कर देता है पेशेंट, क्योंकि उसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एसिडिटी जो है वो बढ़ रही है. ठीक है. Kussmaul's breathing is respiratory compensation for metabolic acidosis. It is a respiratory compensation for metabolic acidosis, most commonly occurring in diabetic patients and in diabetic ketoacidosis patients. नेक्स्ट एक रेडियोग्राफ दिया और पूछा कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंडीशन. इसमें जो रिजॉर्प्शन है वो ग्रीन से दिखाई हुई है. रेडियोग्राफ के अंदर टूथ के अंदर ही रिजॉर्प्शन दिखाई जा रही है. ठीक है. तो इसमें कैसी कैरेक्टरिस्टिक आएगा, क्या पेन और परकशन आएगा, क्या कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर आएगा, क्या कोई सिम्टम फ्री रहेगा या फिर कोई इनिशियल पल्पल पेन होगा. ठीक है. तो इस कंडीशन में जब इंटरनल रिजॉर्प्शन होती है तो देयर इज स्लो डल कॉन्टिन्यूस पेन. कैसी पेन होती है? स्लो डल कॉन्टिन्यूस पेन होती है. इंटरनल रिजॉर्प्शन इज रिलेटिवली रेयर अकरेंस एंड मोस्टली कॉजेज फॉलो अप इंजरी टू द पल्प टिश्यू. ठीक है. इंजरी कोई पल्प टिश्यू को हुई है उसकी वजह से इंटरनल रिजॉर्प्शन होती है, जैसे कि फिजिकल ट्रॉमा हुआ है या कोई केरीज रिलेटेड पल्पाइटिस की वजह से कोई इंजरी हुई है, उसकी वजह से इंटरनल रिजॉर्प्शन ट्रिगर होती है. व्हेन इट अफेक्ट्स द कोरोनल पल्प द क्राउन कैन डिस्प्ले पिंक डिस्कलरेशन. जब कोरोनल पल्प इफेक्ट होता है तो क्राउन पिंक डिस्कलरेशन शो करना शुरू कर देता है, जिसको हम मलबरी टूथ भी बोल सकते हैं या ममरी टूथ भी बोल सकते हैं या फिर जेम्स हॉवर्ड ममरी टूथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि मरमरी जो है वो नाम जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम जेम्स हॉवर्ड ममरी, MUMMERY. इट इज़ अ वैस्कुलर रिजॉर्प्टिव प्रोसेस दैट अप्रोचेज द surface of the tooth resorption and may go unnoticed for years. Often the patient is unaware of it because the lack of symptoms is there. There is lack of symptoms. Pain may be reported if the process is associated with significant pulpal inflammation. अगर पेन प्रेजेंट है तो इट विल बी स्लो एंड डल इन नेचर. लेकिन हम इसको सिम्टम फ्री नहीं बोल सकते. क्योंकि सिम्टम फ्री क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि कलर चेंज हो सकता है. ठीक है. पल्पल पेन हो सकती है जब लेइंग डाउन वगैरह पे नहीं होती, लेकिन कोई भी अगर इन्फ्लामेशन होती है पल्पल पेन की तो वहाँ पे स्लो और डल इन नेचर की पेन होती है. Next, the drug of choice in H1N1 influenza virus infection is what? It's oseltamivir. ठीक है, oseltamivir देते हैं हम. Laboratory testing has found that H1 influenza virus, that is swine flu virus, is susceptible to prescription of antiviral drugs, oseltamivir and zanimivir. ठीक है, oseltamivir और zanimivir. Other antiviral agents, example amantadine, ramentadine, are not recommended because of the resistance to other influenza strains documented over the past years. तो हम कौन सा देते हैं? oseltamivir देते हैं और zamivir देते हैं. ठीक है. इसका जो ब्रांड नेम है दैट इज Tamiflu, दैट इज oseltamivir फॉस्फेट कैप्सूल. 75 मिलीग्राम का कैप्सूल होता है, 75 मिलीग्राम का कैप्सूल. ठीक है. नेक्स्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ इज प्रोवाइडेड बाय विच अब्रेसिव्स. स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है दैट इज प्रोवाइडेड बाय सिंटर्ड अब्रेसिव्स. सिंटर्ड अब्रेसिव जो छाने हुए अब्रेसिव होते हैं उनसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइडेड होती है. लेट्स डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ पार्टिकल्स. फर्स्ट आती है सिंटरिंग. सिंटरिंग अब्रेसिव्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वैरायटी सिंस द अब्रेसिव पार्टिकल्स आर फ्यूज टुगेदर. फिर आता है विट्रस बॉन्डेज अब्रेसिव. दे आर मिक्सड विद ग्लासी और सिरेमिक मटेरियल मिक्स, कोल्ड प्रेस्ड इनटू द इंस्ट्रूमेंट शेप एंड देन फायर टू फ्यूज विद द बाइंडर. ठीक है. इसको ग्लासी सिरेमिक मिक्स में बनाते हैं, कोल्ड प्रेस करते हैं, उसके बाद फायर करते हैं ताकि वो बाइंडर के साथ फ्यूज़ कर जाए. फिर आता है रेजिन बॉन्डेड. रेजिन बॉन्डेड में हॉट या कोल्ड प्रेस किया जाता है हीट को, और फिर हीट किया जाता है टू क्योर द रेजिन. ठीक है. हीट किया जाता है टू क्योर द रेजिन. ऑलराइट. फिर आता है रबर बॉन्डेड. रबर बॉन्डेड में क्या होता है? दे आर मेड इन अ मैनर विच इज सिमिलर टू रेजिन बॉन्डेड. इसको भी कोल्ड प्रेस किया जाएगा, कोल्ड या हॉट प्रेस जो भी करना है. फिर उसको हीट या फिर कोई भी आपका जो मटेरियल है, जैसे लाइट को आप यूज़ कर लो क्योरिंग के लिए, हीट को यूज़ कर लो, फिर आप उससे उसको बॉन्ड करते हो. ठीक है, क्योर करते हो उसको. बट द स्ट्रॉन्गेस्ट वन आर सेंटर्ड. नेक्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिलियंसी? रेजिलियंसी इज द अमाउंट ऑफ इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज सस्टेन्ड ऑन लोडिंग एंड रिलीज्ड अपॉन अनलोडिंग. ठीक है. अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज सस्टेन्ड ऑन लोडिंग एंड रिलीज्ड अपॉन अनलोडिंग ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन. ठीक है. अगली डेफिनेशन है ब्रिटलनेस के बारे में. ब्रिटलनेस इज रिलेटिव इनएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डिफॉर्म प्लास्टिकली बिफोर इट फ्रैक्चर्स. बिफोर इट फ्रैक्चर्स वो कितना इनएबल है टू कितना डिफॉर्म करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, इलास्टिक स्ट्रेन. Elastic strain is the amount of deformation that is recovered instantaneously when the external force applied
और द प्रेशर इज एलिमिनेटेड, ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई की गई है या जो प्रेशर हमने लगाया हुआ है उसको हम रिड्यूस या एलिमिनेट कर दें तो कितना डिफॉर्मेशन वापस रिकवर हो जाता है, दैट इज नोन एज इलास्टिक स्ट्रेन. लास्ट परसेंटेज इलॉन्गेशन इज द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक स्ट्रेन expressed as a percentage of original length which tensile strength test specimen sustains at a point of fracture. Next question is floating tooth appearance is seen in which condition? Floating tooth appearance is seen in Langerhans cell histiocytosis. Next, patient is suffering from syphilis. After treatment, the test for monitoring the treatment of syphilis is what? It is VDRL test. ठीक है, Venereal Disease Research Laboratory test किया जाता है. The patient treated for primary and secondary syphilis should have a follow-up of VDRL test, that is 6 months follow-up and 12 months follow-up after treatment. ठीक है. Next, Roy's disimpaction forceps are used to do what? Roy's disimpaction forceps are used to separate the maxillary bones in cases of impacted fractures of facial skeleton. किन केसेस में? इन केसेस ऑफ इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स ऑफ फेशियल स्केलेटन ये रॉयज डिसइम्पैक्शन फोर्सेप जो है वो यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट, डायबिटिक पेशेंट बिकम्स वीक एंड अनकॉन्शियस, व्हाट इज द थिंग दैट इज विल बी गिवन? हम 50% डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन डायबिटिक पेशेंट को दे देंगे, ठीक है, IV दे देंगे, या 50% डेक्सट्रोज इंजेक्शन इज गिवन और इंडिकेटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपर इंसुलिनीमिया और इंसुलिन शॉक. ये तीनों एक ही चीज़ बनती है. सो एज टू रिस्टोर द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ डेक्सट्रोज एंड अवॉइडेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया दोज हु टेक इनटेक रिस्ट्रिक्टेड और इनएडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन आकर. ठीक है, मतलब जिसने कम खाना खाया या फिर इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन लिया है उसमें ये चीज़ मेंटेन करने के लिए कि उसको उतना ग्लूकोज मिले ही मिले, हम 50% डेक्सट्रोज का इंजेक्शन दे देते हैं कि उसका बॉडी चलता रहे, जिंदा रहे वो बंदा. नेक्स्ट, इम्प्रॉपर केवो सरफेस मार्जिन लीड्स टू व्हाट? इम्प्रॉपर अगर केवो सरफेस मार्जिन होगा तो दैट विल लीड टू माइक्रो लीकेज, दैट विल लीड टू मार्जिनल गैप्स एंड दैट विल लीड टू परकोलेशन ऑफ ओरल फ्लूइड्स. ओके, तीनों चीज़ें होंगी. द केवो सरफेस एंगल इज द एंगल ऑफ द टूथ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द जंक्शन ऑफ अ प्रिपेयर्ड वॉल एंड द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द टूथ. प्रिपेयर्ड वॉल और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द टूथ के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं केवो सरफेस एंगल. द एक्चुअल जंक्शन इज रेफर्ड टू एज द केवो सरफेस मार्जिन. इस एक्चुअल जंक्शन को हम केवो सरफेस मार्जिन बोलते हैं. द केवो सरफेस एंगल मे डिफर विद द लोकेशन ऑफ द टूथ, द डायरेक्शन ऑफ इनेमल रॉड्स ऑन द प्रिपेयर्ड वॉल और द टाइप ऑफ रेस्टोरेटिव मटेरियल टू बी यूज्ड इन दिस, मतलब रेस्टोरेशन जो भी हम कर रहे हैं. लेकिन अगर इम्प्रॉपर होता है तो उससे माइक्रो लीकेज हो जाएगी, मार्जिनल गैप्स हो जाएंगे, पर्कुलेशन ऑफ ओरल फ्लूइड्स हो जाएगी. नेक्स्ट, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोन इज ड्यू टू व्हाट? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोन इज ड्यू टू कोलेजन. कोलेजन की वजह से होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ. दो चीज़ें पढ़ते हैं हम, कोलेजन की वजह से टेंसाइल स्ट्रेंथ आती है और हाइड्रोक्सी एपेटाइट की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है. नेक्स्ट, क्रॉनिक डिजीज विद द मल्टीपल कॉज एंड इफेक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू वेब ऑफ कॉजेशन. ठीक है, इट इज़ नॉट अ मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी, इट इज़ नॉट अ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ अ डिजीज, इट इज़ नॉट अ एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड. अ क्रॉनिक डिजीज विद मल्टीपल कॉजेज एंड मल्टीपल इफेक्ट्स इज वेब ऑफ कॉजेशन. ठीक है, वेब ऑफ कॉजेशन जो थी टर्म दैट वाज कॉइन्ड बाय मैकमोहन एंड पुग, PUGH, that is applicable in certain diseases, especially in chronic diseases where the causative agent may be unknown or uncertain and the result of the disease is the interaction of multiple factors. ठीक है, रिजल्ट जो है वो मल्टीपल फैक्टर के इंटरेक्शन की वजह से निकल रहा है. रिमूवल ऑफ सम ऑफ देम और इवन वन ऑफ देम मे बी सफिशिएंट टू कंट्रोल द डिजीज. इस पूरे वेब में से अगर हम एक भी फैक्टर को कंट्रोल कर लेते हैं तो उससे डिजीज पर कंट्रोल इजीली आ जाता है. दिस इज नोन एज वेब ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज, coined by McMahon and Pugh. Next, bruchite content is more in what? Bruchite content is more in mandibular anteriors. Okay. Calculus consists of 70 to 90% of mineralized inorganic materials. Inorganic materials में हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट आ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट आ जाता है. Calculus consists of 70 to 90% of mineralized inorganic materials. जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं उसके अंदर हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, मैग्नीशियम होता है, विट लोकाइट होता है, ऑक्टा कैल्शियम फॉस्फेट एंड ब्रूशाइट होता है.
When compared to supragingival calculus, subgingival calculus has more amount of magnesium and Witt-Lockite. Subgingival के पास more amount of magnesium होगा plus Witt-Lockite more amount में होगा. Subgingival के पास less brucite होता है और less octacalcium phosphate होता है. Less brucite and less octacalcium phosphate. When compared to supragingival calculus, subgingival calculus में Witt-Lockite ज़्यादा होगा. ठीक है, ये याद रखना है. Witt-Lockite इज इन सबजिंजाइवल कैलकुलस और ब्रूशाइट सुपरा में ज़्यादा होता है. नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस विद बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया विद हाइपरटेंशन इज व्हाट? इट इज प्राजोसिन. ठीक है, प्राजोसिन दिया जाता है. सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स प्राजोसिन, टेराजोसिन एंड डॉक्साजोसिन एंड alfazocin. They are the drug of choice for the patients with hypertension plus benign hyperplasia of the prostate. Due to relaxation of the smooth muscles in the neck of the urinary bladder and prosthetic urethra, urinary flow is improvised by these drugs. Prazosin, terazocin and doxazocin. इसके अलावा alfazocin भी देते. These all are selective alpha blockers. Next, reason for early setting of alginate is due to what? अर्ली सेटिंग के बहुत ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं. इन चारों रीज़न में से लोअर वाटर पाउडर रेशो अर्ली सेटिंग का एक रीज़न होता है. ठीक है, वेज टू डिक्रीज सेटिंग टाइम. हाउ कैन यू डिक्रीज द सेटिंग टाइम? यू कैन डिक्रीज द वाटर पाउडर रेशो, यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पैचुलेशन, उसकी मिक्सिंग आप ज़्यादा फास्ट कर दो, एंड यू कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर दैट इज यूज फॉर मिक्सिंग. जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी जल्दी रिएक्शन, उतना कम जो है वो सेटिंग टाइम होगा. Next, trismus in a 5-year-old is caused due to what? Trismus in a 5-year-old is caused due to bilateral TMJ ankylosis. Ankylosis is defined as a condition of a stiffness of a joint due to abnormal adhesion and rigidity of bones of the joint. It means that the movement of condyle is limited, which might lead to partial or complete inability to open the mouth. Mostly it is caused due to the fusion, that is bony and fibrous fusion of the condyle of the mandible to the base of skull, जिसकी वजह से हमारे पास TMJ ankylosis हो सकती है. इसमें बेसिकली कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ है पहले, उसकी वजह से ये चीज़ होती है. द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंकालोसिस इन चिल्ड्रन इज द डिस्टर्बेंस ऑफ द मैंडिबुलर फ्यूचर ग्रोथ कॉजिंग ग्रॉस डिफॉर्मिटी अपार्ट फ्रॉम द लिमिटिंग माउथ ओपनिंग. बाद में जो है वो ग्रॉस डिफॉर्मिटी फेशियल स्केलेटन पर ही विजिबल होना शुरू हो जाती है. ट्रॉमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बोनी एंड फाइब्रस एंकालोसिस. नेक्स्ट, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग द ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डेफिशिएंसी एक्सेप्ट व्हाट? ट्रू क्या क्या है हमारे पास? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डेफिशिएंसी में हाइपोग्लाइसीमिया देखा जाता है, डिफेक्टिव कोराई साइकिल देखी जाती है, एंड देयर इज इंक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द लिवर. ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इट क्लीव्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाता है. दिस एंजाइम इज एब्सेंट इन मसल एंड ब्रेन and hence free glucose cannot be produced from glucose 6 phosphate in these tissues. ठीक है, मसल्स और ब्रेन में ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं हो पाता बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यूजिंग ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम. ठीक है, सो अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की डेफिशिएंसी है तो वहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया नहीं हो सकता. दैट इज द रॉन्ग आंसर. ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज चाहिए हमको ताकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम ग्लूकोज निकाल सकें. तो अब ग्लूकोज बनेगा नहीं तो हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं हो सकता. ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली एक्सट्रैक्टेड सेंट्रल इंसाइजर्स हुए हैं तो पॉन्टिक ऑफ चॉइस इज व्हाट? देखो, अगर आपका रिसेंट एक्सट्रैक्शन हुआ है तो ऑलवेज द पॉन्टिक ऑफ चॉइस शुड बी ओवेट. In maximum condition, it should be ovate. The ovate pontic is a technique that is used to create an illusion that the tooth is growing out of the gums, which is known as an emergence profile that can also help to create and maintain the interdental papilla. The ovate pontic contour is the effective design for cleansability. ठीक है. Next, the Jiffy's denture are used for which phase of treatment? Jiffy denture जो होता है that is used in phase 3 of treatment. ओके, कौन से फेज में? फेज 3 ऑफ ट्रीटमेंट. व्हाट आर जिफी डेंचर्स? जिफी डेंचर्स वर गिवन बाय रैकज़का RACZKA एंड एस्पोसितो इन 1995. जिफी डेंचर इन्होंने दी थे, रैकज़का एंड एस्पोसितो. It is similar to interim dentures because it is replaced by secondary denture after healing. It differs from interim immediate denture in that the teeth that are usually made with tooth-colored auto-polymerizing acrylic resin or portions of the patient's pre-existing fixed or removable partial denture. जो पुराना पेशेंट का pre-existing denture है उसके पोर्शन यूज़ करके या फिर auto-polymerizing acrylic resin से यूज़ करके हम एक intermediate denture देते हैं इसमें. The disadvantage is that the denture teeth are not long lasting.
ठीक है, उनका वियर और कलर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। लेट्स डिस्कस द ट्रीटमेंट फेजेस। सबसे पहले आती है प्रीलिमिनरी इमरजेंसी फेज, ठीक है, इसमें कुछ इमरजेंसी में आपने करना है तो वो चीज़ होती है। फेज़ 1 में दैट इज़ ईटियोट्रॉपिक फेज, फेज़ 1 में हम करते हैं स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग। फेज़ 2 की जब बात आती है तो उसमें सर्जिकल फेज आता है, क्राउन लेंथनिंग या फिर कोई पेरिडोंटल सर्जरी आपने करनी है, दैट इज़ इन फेज़ 2। फेज़ 3 इज़ रेस्टोरेटिव फेज, जिसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजनल आप डेंचर देते हो, एफपीडी देते हो, या फिर इमीडिएटली आप देना चाहते हो तो जिफीज डेंचर दे सकते हो या फिर कन्वेंशनल डेंचर दे सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो गिव इंटरिम डेंचर्स इन फेज़ 3। Phase 4 is the maintenance phase. It is also called as recall and check phase. Next, which of the following is not a pre-malignant lesion to oral cancer? OMFS is a pre-malignant lesion, erythroplakia is a pre-malignant lesion, and leukoplakia is a pre-malignant lesion. लेकिन linea alba is a normal anatomical variation. लीनिया एल्बा में कोई प्री मैलिग्नेंट लीजन का काम नहीं बनता है, ठीक है। प्री मैलिग्नेंट लीजन्स इंक्लूड ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, ओरल लाइकन प्लानस एंड ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जो हम कॉमनली पढ़ते हैं। ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, ओरल लाइकन प्लानस, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। नेक्स्ट, 25-year-old फीमेल पेशेंट आफ्टर डिलीवरी हैड प्रोफ्यूज्ड पोस्टपार्टम हैमरेज एंड डाइड, ठीक है। डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम हैमरेज इतनी ज़्यादा हो गई कि उसकी मृत्यु हो गई। इन ऑटोप्सी शी वॉज हैविंग अ राइट एट्रियल एनलार्जमेंट एंड साइनोसिस। राइट एट्रियल एनलार्जमेंट थी और साइनोसिस भी थी उसके अंदर। व्हाट इज द डायग्नोसिस? देयर इज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की वजह से शी डाइड। प्री क्लैम्पसिया, दैट इज हाई बीपी एंड signs of damage to another organ, that is proteinuria, usually after 20 weeks of pregnancy, is known as preeclampsia. Eclampsia, that is ECLAMPSIA, is a very serious condition in which the woman experiences seizures due to hypertension. ठीक है। The classical form of amniotic fluid embolism presents as a sudden onset of respiratory distress followed by a sudden cardiovascular collapse. ठीक है, सडन रेस्पिरेटरी ऑनसेट हो जाता है, उसके साथ सडन कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स भी हो जाता है। दिस इज फॉलोड बाय कार्डियक अरेस्ट और कोएगुलोपैथी। एक्सपोजर ऑफ मैटरनल सर्कुलेशन टू एमनियोटिक फ्लूइड और फीटल एंटीजेंस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज अ प्री रिक्विजिट टू अकर फॉर AFE, ठीक है, जो यहाँ पे हुआ है, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। अबाउट 70% ऑफ द केसेस occur during labor and 19% during the cesarean section. 11% of delivery in the immediate postpartum stages has been recovered. ठीक है, मतलब ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म जो है ये सडनली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करवा देता है और कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स करवा देता है। अगर सिंपल तरीके से कहें तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म तब होता है जब एमनियोटिक फ्लूइड, जैसे कि बेबी के अराउंड जो फ्लूइड होता है या फीटल सेल्स जो है या डेब्रिस जो है फीटल सेल्स की, वो एंटर कर जाती है मदर के ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। अगर वो मदर की ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाती है तो वहाँ पे सीवियर रिएक्शन हो जाता है जो कि अफेक्ट करता है लंग्स को, हार्ट को और ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम को। दिस हैपन्स इन द बॉडी इन ईजी वर्ड्स, जब प्रेगनेंसी हो रही है तब स्मॉल टीयर फॉर्म्स बिटवीन द यूट्रस एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, छोटे छोटे टीयर मतलब छोटे छोटे कट्स बज रहे हैं जहाँ पे यूट्रस और ब्लड वेसल के बीच में, तो एमनियोटिक फ्लूइड की ज़्यादा टेंडेंसी हो जाती है कि मदर के अंदर एंटर कर जाए, जिसकी वजह से सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जिससे सडन ब्रीदिंग फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, मैसिव ब्लीडिंग हो सकती है ड्यू टू द क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। इट इज़ मोस्टली कॉमन ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग सेजेरियन सेक्शन एंड जस्ट आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। कभी एमनियोसेंटेसिस या अबॉर्शन या प्लेसेंटल रिमूवल में ये चीज़ कॉमन नहीं देखी जाती। यहाँ पे रेस्पिरेटरी कोलैप्स बहुत जल्दी होता है, तो आपको हिपोक्सिया मदर के अंदर नहीं होने देना है अगर मदर को बचाना है तो। अर्ली इंट्यूबेशन एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन शुड बी देयर। कार्डियक आउटपुट के लिए सारी टीम जो है वो रेडी होनी चाहिए। वेजोप्रेसर जैसे कि नॉर्ड्रेनालिन जो है वो प्रेफर किया जाना चाहिए। लार्ज बोर आईवी लाइंस जो है वो क्रिस्टलॉइड्स के साथ पेशेंट को लगा दी जाती है। और कुछ भी करके यू हैव टू स्टॉप द ब्लीडिंग, यू हैव टू स्टॉप द ब्लीडिंग। कोएगुलोपैथी नहीं होने देनी है। यू हैव टू मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल होना चाहिए। आपको मॉनिटर करना है पीटी और एपीटीटी, फाइब्रिनोजन मेंटेन करके रखने और इमीडिएट डिलीवरी करवानी है, ठीक है। एमरजेंसी सजेरियन इमीडिएट डिलीवरी शुड बी देयर, ठीक है। अगर हिस्टेक्टोमी करनी पड़ जाए तो अगर ब्लीडिंग जो है वो बहुत ही अनकंट्रोलेबल है, मतलब नहीं हो पा रही कंट्रोल और इतना बन चुका है कि मदर की डेथ पक्का ही है, तो यू द लास्ट थिंग इज हिस्टेक्टोमी शुड बी डन सो एज टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, ओके। आईसीयू की केयर में जाता है पेशेंट। मैकेनिकल वेंटिलेशन, हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग होती है, रीनल सपोर्ट इफ नीडेड शुड बी गिवन, न्यूरोलॉजिकल प्रोटेक्शन करी जाती है और स्ट्रिक्ट बुल फ्लूइड बैलेंस दिया जाता है, ठीक है। सॉसेज लिंक अपीयरेंस पैटर्न अपीयर इन सियालोग्राफी इन विच कंडीशन। देखो सॉसेज लिंक पैटर्न जो होता है वो सियालो की डाइटिस में होता है, ठीक है।
सियालोकिडाइटिस में सॉसेज लिंक्ड पैटर्न होता है, ऐसे सॉसेज से जो है वो लिंक्ड दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज सियालिडनाइटिस। सियालिडनाइटिस में डॉट्स या फिर ब्लेब्स दिखाई देते हैं ऐसे से, ठीक है। दिस इज सियालिडनाइटिस, डॉट्स या फिर ब्लेब्स। नेक्स्ट आता है जॉगरन सिंड्रोम, जिसमें चेरी ब्लॉसम अपीयरेंस आती है। चेरी ब्लॉसम अपीयरेंस, जॉगरन सिंड्रोम, ठीक है। ये डॉट्स और ब्लेब्स पूरे में दिखाई दे रहे हैं। चेरी ब्लॉसम देखो एक पेड़ की तरह लग रहा है, बिल्कुल एक पेड़ की तरह जा रहा है, उसके बाद ये चेरी ब्लॉसम की तरह दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज इन जॉगरन सिंड्रोम। और चौथा आता है ट्यूमर इन द ग्लैंड, बॉल इन हैंड अपीयरेंस। ये किसी भी बेनाइन ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड के अंदर होता है, ऑलराइट। बॉल इन हैंड अपीयरेंस या फिर ट्यूमर इन द ग्लैंड, बॉल इन हैंड अपीयरेंस इज एन बेनाइन ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। Next, Cooley's anemia is also known as what? Cooley's anemia is also known as beta thalassemia. Okay, it is beta thalassemia major. It is an autosomal recessive disorder characterized by the reduced production of one of the globin chains and synthesis of hemoglobin. Both the parents must be carriers, ताकि अगर बच्चा जो है उसके अंदर बीटा थैलेसीमिया मेजर हो, ठीक। टाइप्स क्या हो सकते हैं इसमें? थैलेसीमिया माइनर होता है, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट होता है और थैलेसीमिया मेजर होता है। थैलेसीमिया मेजर को हम कूलीज एनीमिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्डियक डिजीज मार्कर इन लैबोरेटरी टेस्ट? कार्डियक डिजीज मार्कर में मायोग्लोबिन भी आता है, CKMB भी आता है एंड ट्रोपोनिन भी आता है, ठीक है। मायोग्लोबिन इज डिटेक्टेड आफ्टर 1 to 4 आवर्स ऑफ पोस्ट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है CKMB। CKMB का मतलब होता है क्रिएटिन काइनेज MB, ठीक है। इट इज डिटेक्टेड 12 to 24 आवर्स पोस्ट MI, ठीक है। और MB में B का मतलब ब्रेन होता है और M का मतलब होता है मसल, ओके। ट्रोपोनिन कैन बी फाउंड एट 10 to 14 डेज पोस्ट MI। ट्रोपोनिन 10 से 14 दिन के बाद MI के पेशेंट में दिखाई देना शुरू होगा। CKMB दैट इज क्रिएटिन काइनेज मसल एंड ब्रेन, इट इज डिटेक्टेड एट 12 to 24 आवर्स पोस्ट MI। और मायोग्लोबिन जो है वो डिटेक्ट हो जाता है आफ्टर 1 to 4 आवर्स ऑफ पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो इससे पता चलता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो अटैक है वो हुआ है। नेक्स्ट, ऑसिपिटल मायोटोम्स गिव राइज टू मसल ऑफ विच ऑर्गन? तो आंसर इज टंग। ऑसिपिटल मायोटोम्स जो है वो मसल ऑफ टंग को ओरिजिनेट करवाते हैं। और ऑसिपिटल सोमाइट्स दैट इज 1 to 5 इन ह्यूमन स्टेजेस फ्यूज एट अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू सेगमेंटल स्केलेटल स्ट्रक्चर्स। कोई भी सेगमेंटल स्केलेटल स्ट्रक्चर नहीं बनाता ऑसिपिटल सोमाइट। दे इनकॉर्पोरेट इनटू द ऑसिपिटल एरिया ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्कल एंड गिव राइज टू टंग मसल्स। कहाँ इनकॉर्पोरेट कर रहा है? ऑसिपिटल एरिया ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्कल में, और टंग मसल्स को गिव राइज दे रहा है एंड ऑल्सो कंडेंस्ड टू कंट्रीब्यूट टू बेसो ऑसिपिटल एंड एक्सो ऑसिपिटल कार्टिलेजेस। इससे कंडेंस होकर क्या बन रहा है? बेसो ऑसिपिटल एंड एक्सो ऑसिपिटल कार्टिलेजेस, ऑसिपिटल सोमाइट या फिर ऑसिपिटल मायोटोम्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंजरी टू अ सेल इज रिवर्सिबल? देखो, फैटी चेंजेस अगर होते हैं तो दे आर रिवर्सिबल। नेक्रोसिस अगर हो जाती है तो दैट इज इरिवर्सिबल। एपोप्टोसिस इज इरिवर्सिबल, ओके। नाउ सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी के एग्जांपल हैं इरिवर्सिबल के नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। रिवर्सिबल सेल इंजरी के एग्जांपल्स हैं सेलुलर स्वेलिंग दैट इज हाइड्रोपोनिक चेंजेस एंड फैटी चेंजेस। ये सेलुलर इंजरी के एग्जांपल्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट रिवर्सिबल चेंज इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर स्वेलिंग है विद फ्यू स्मॉल एमॉर्फस डेंसिटीज देन इट इज रिवर्सिबल। अगर सिवियर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की स्वेलिंग है और लार्ज एमॉर्फस डेंसिटीज बन जाती हैं तो दैट इज इरिवर्सिबल। फिर बात आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट विद फ्यू ब्लेबिंग, ब्लोटिंग विद लॉस ऑफ माइक्रोविलाई दैट इज अ रिवर्सिबल चेंज। अगर इरिवर्सिबल चेंज होता है तो एक्सटेंसिव डैमेज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकर्स विद लूज सेलुलर ऑर्गेनलीज, ठीक। लाइसोसोम की बात करते हैं। अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो मतलब लाइसोसोम रिवर्सिबल इंजरी पे। अगर मेम्ब्रेन टूट चुकी है, वैक्यूल बन चुके हैं, तो वहाँ पे इरिवर्सिबल चेंज हो चुका है। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर स्मूथनिंग विद डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम है, स्मूथनिंग है सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में विद डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, तो देन इट इज़ अ रिवर्सिबल इंजरी। इफ देयर इज लिसिस of the endoplasmic reticulum and there is dilation with detachment of ribosome, मतलब डायलेशन भी है डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम के साथ और लिसिस हो चुकी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, देन दैट इज अ इरिवर्सिबल चेंज। फिर आती है बात न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस में अगर क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन हुआ है तो दैट इज अ रिवर्सिबल चेंज। अगर पिक्नोसिस हो गया है, कैरियोलिसिस हो गया या कैरियोरेक्सिस हो गया तो वहाँ पे इरिवर्सिबल इंजरी होती है। ओनली क्लम्पिंग इज रिवर्सिबल। फिर आती बात साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म में इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म विद फाइन माइलिन फिगर्स इट इज़ रिवर्सिबल। एंड अगर इओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म जो है वो उसमें माइलिन फिगर्स कोर्स दिखाई देते हैं, फाइन नहीं दिखाई देते, कोर्स,
कोर्स का मतलब है इट इज़ गॉन इरिवर्सिबल। नेक्स्ट, ओपियोइड ड्रग्स एक्ट बाय व्हाट? ओपियोइड ड्रग्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको इनहिबिट करवा देता है बेसिकली और उससे एक्ट करता है। एक्टिवेशन ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर्स इन द CNS इवोक्स अ ड्रामेटिक डिक्रीज इन हार्ट रेट डिक्रीज करवा देगा, विच इज़ मीडिएटेड बाय इंक्रीज इन पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हार्ट की इंक्रीज करती है तो हार्ट रेट डिक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज इन द ओपिएट्स इनटू द न्यूक्लियस एम्बिगस वेयर द प्रीमोटर कार्डियक प्री पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस एम्बिगस न्यूरॉन्स आर लोकेटेड एलिसिट अ इंक्रीज इन द पैरासिम्पैथेटिक कार्डियक एक्टिविटी एंड ब्रेडिकार्डिया। जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज करेगी, देखना पैरा जब बोल रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक मतलब सिंपैथेटिक का उल्टा ही करेगा ये, तो इसमें ब्रेडिकार्डिया होता है, हार्ट रेट डिक्रीज करता है। ओपियोइड के दो एक्शन होते हैं दो नर्व साइड पे, या तो वो नर्व साइड के पहले एक्ट कर जाएगा प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल पे या फिर पोस्ट साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल पे। बेसिकली वो जो नर्व से जो हमारा एक्शन पोटेंशियल निकल रहा है उसको रोकने का काम करेगा, तो पहले भी रोक सकता है बाद में भी रोक सकता है। द पोस्ट साइनेप्टिक एक्शन ऑफ ओपियोइड्स इज यूजुअली इनहिबिटरी। अगर पोस्ट साइनेप्टिक एक्शन है तो वो यूजुअली इनहिबिटरी एक्शन होता है। The presynaptic action of opiates is to inhibit the neurotransmitter release, and this is considered to be their major effect in the nervous system. Opiates inhibit the GABA-mediated GABAergic synaptic transmission in the PAG, ठीक है, post synaptic कुछ होगा, and other regions of the brain, reducing the probability of presynaptic neurotransmitter release. जब presynaptically neurotransmitter release ही नहीं करेगा तो ये सारा action potential जो है वो slow हो जाएगा। ठीक है, ऐसे काम करता है। नेक्स्ट, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ अकल्ट केरीज इज व्हाट? अकल्ट केरीज को हम सबसे ज़्यादा बेटर बाइट विंग रेडियोग्राफ से पता लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी तरीके भी होते हैं, ड्राई अपटेक, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी, गुड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, लेकिन बाइट विंग से यू कैन इफेक्टिवली डायग्नोस occult caries. Okay, hidden caries is a term that is used to for occult caries or occlusal caries that are missed on visual examination but are large enough to be present in the oral cavity and demineralized enough to be detected radiographically. Okay, now bite wing radiographs are one of the most useful aids in diagnosis of early fissure caries. तो यहाँ पे ऊपर का इनामल इंटैक्ट है लेकिन इनामल के नीचे केरी शुरू हुई है, हमें उसे डिटेक्ट करने के लिए बाइट विंग रेडियोग्राफ लेने की भी जरूरत पड़ती है। एंड देयर यूज इन कंजक्शन विद केयरफुल क्लिनिकल एग्जामिनेशन टेक्निक्स आर लाइकली टू डिटेक्ट द occlusal caries. Radiographically, it is more commonly used by clinicians and has been shown to be a considerably valuable thing जो रेडियोग्राफ है when visual findings are inconclusive. Other instruments to aid occlusal caries diagnosis are inconclusive, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक ट्रांसल्यूमिनेशन, लेजर इल्यूमिनेसेंस, लाइट स्कैटरिंग, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेजरमेंट या फिर डाई अपटेक। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है एडजंक्ट की तरह काम करती हैं फॉर डिटेक्टिंग द केरीज। लेकिन फॉर अ डायग्नोसिस बेस्ड अपॉन ओनली वॉचिंग, तो देखने में उतना डायग्नोसिस नहीं आएगा, उसके बाद आपको रेडियोग्राफ जो है वो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, सो ऑक्लूजल रेडियोग्राफ्स और बाइट विंग रेडियोग्राफ्स, ऑक्लूजल में इतना ढंग से पता नहीं चलता, बाइट विंग रेडियोग्राफ में ज़्यादा ढंग से पता चलता है अगर ऑकल्ट केरीज या फिर occlusal caries present है। Next, in a class 3 preparation, aesthetic groove is placed where? तो aesthetic groove is placed entirely within dentine, alright? Conventionally class 3 preparation जो होती है वो रूट सरफेस के ऊपर ही होती है लगभग। ठीक है, कैविटी बॉक्स की तरह बनती है, डेप्थ जो होती है वो 0.75 mm ऑन द रूट सरफेस होती है और 0.2 mm तक हमारी डेंटिन के ऊपर होती है। ठीक है, 90 डिग्री के वो सरफेस मार्जिन इज रिक्वायर्ड, ग्रूव रिटेंशन कैन बी प्रिपेयर्ड 0.25 mm into the dentine of the axiogingival line and incisoaxial line, और डवटेल के साथ इसमें एक्सटेंशन दे दी जाती है। ठीक, नाउ इट इज़ जो क्लास 3 में ग्रूव बनाते हैं वो इंटायरली इन द डेंटिन बनती है। इफ़ वी आर गोइंग फॉर एस्थेटिक ग्रूव, AESTHETIC, ठीक है, एस्थेटिक ग्रूव अगर बना रहे हैं तो इंटायरली विद इन डेंटिन बनेगी। Next, define exodontia. Exodontia can be defined as painless removal of the tooth or any part of the tooth or root and removing it causing uneventful healing. So answer is all of the above. Okay, let's go with the definition. Exodontia can be defined as the painless removal of the whole tooth or a part of tooth or a root without trauma to the investing tissues so that the wound it heals uneventfully and no post-operative prosthetic problem is created. Next, Killian dehiscence in a weak area of pharynx is seen at what? Killian dehiscence होती है वो laryngopharynx में देखी जाती है। Killian dehiscence is seen in laryngopharynx.
Killian distance is a gap between oblique and transverse fibers of inferior constrictor muscle. It is a gap between oblique and transverse fibers of inferior constrictor muscles. A pharyngeal pouch or Zenker's diverticulum can be formed by outpouching of the pharyngeal mucosa at this site. It is most common site for perforation during esophagioscopy and hence is called as the gateway of tears. ठीक है, Killian distance को gateway of tears भी कहा जाता है. थायरोफेरेंजिस और क्रीकोफेरेंजिस के बीच में हमारे पास कीलियन डेहिसेंस आती है यहाँ पे. नेक्स्ट, 44-year-old male patient comes with a complaint of sudden gap between his front teeth along the occasional bleeding from gums and halitosis. Intraoral examination shows mobility of incisors, premolars and molars. Radiographs show bone loss with horizontal and vertical defects. Identify the condition. It is generalized aggressive periodontitis. Okay, generalized aggressive periodontitis is characterized by generalized interproximal attachment loss affecting at least 3 permanent teeth. लगभग 3 permanent teeth इसमें affect होते हैं. Other than the first molars and incisors. Other than first molars and incisors, 3 permanent teeth और affect होते हैं. The most common reported complaints are recent noticing of flaring, progressing spacing of anteriors, and bleeding from the gums comparatively in the young patient, but the patient can be older as well. Now, patients may complain of halitosis and pus discharge from the gums. Mobility of the teeth can be there. It will be seen towards the later stages of the infection. In generalized aggressive periodontitis, radiograph may show generalized bone destruction ranging from mild creston bone resorption to severe alveolar bone destruction. ठीक है, depending on the severity of the disease, the defect may be in combination of vertical and horizontal defect. ठीक है, किस में दिखता है ये सारा दिखता है जनरलाइज एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस में. नेक्स्ट, अ पेशेंट रिपोर्ट्स विद मल्टीपल मोबाइल टीथ, सीवियर बोन लॉस एंड डायग्नोस्ड with generalized periodontitis. The first phase of treatment should be what? The first phase of treatment should be scaling and root planing. ठीक है, प्रिलिमिनरी फेज जो होता है, पहला फेज सबसे पहले हम जो स्केलिंग और रूट प्लेनिंग है वही करते हैं फेज 1 थेरेपी में. नेक्स्ट, एन एक्यूट इन्फेक्शन इज अराइजिंग फ्रॉम द अपर लेटरल इंसाइजर विच विल कॉल एब्सेस इन विच टीथ. ठीक है, एब्सेस दांत में नहीं होगी, एब्सेस पैलेट की तरफ होगी. ठीक है, एब्सेस विल बी इन पैलेट. द पैलेटल एब्सेस अराइजिंग फ्रॉम द लेटरल इंसाइजर इज वेरी टिपिकल एब्सेस. ठीक है, जो कि नॉन वाइटल लेटरल इंसाइजर से अपर पैलेटल रूट के पास जो उसी दांत की पैलेटल रूट है वहाँ पे अकर करती है. नेक्स्ट, कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनियम एज पार्ट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट व्हाट. तो किस किस का पार्ट होता है? हेपेटोसेलुलर डिजीजेज कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनियम में देखी जाती हैं. हेपेटाइटिस बी देखी जाती है. बिलियरी एट्रेजिया देखा जाता है. ठीक है, मतलब कि बाइल डक्ट यहाँ पे एब्सेंट होती है. ठीक है, बाइल डक्ट ही एब्सेंट होती है. द क्राइटेरिया नजार सिंड्रोम नहीं देखा जाता. ठीक है, क्राइटेरिया नजार सिंड्रोम इज नॉट सीन इन दिस. टाइप्स ऑफ बिलिरुबिन में कौन कौन से होते हैं? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, अनकॉन्जुगेटेड एंड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, फिर कॉन्जुगेटेड या ऑब्स्ट्रक्टिव बिलिरुबिन जॉन्डिस हो जाता है. ठीक है, जॉन्डिस कैसा होगा? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में अगर होता है तो प्री हेपेटिक या हेमोलिटिक जॉन्डिस होगा. इसमें कॉजेज होते हैं abnormal RBC antibodies, drugs, toxins, thalassemia, hemoglobinopathies, Gilbert syndrome and Kliger-Najar syndrome. Gilbert syndrome और Krigler-Najar syndrome जो है वो अनकॉन्जुगेटेड टाइप ऑफ प्री हेपेटिक या हिमोलिटिक बिलिरुबिनिया में है या फिर जॉन्डिस के अंदर होता है. ठीक है, दूसरा आता है अनकॉन्जुगेटेड या फिर कॉन्जुगेटेड टाइप ऑफ बिलिरुबिन जो कि हेपेटिक या हेपेटोसेलुलर डिजीज़ में देखा जाता है. ये वायरल हेपेटाइटिस, टॉक्सिक हेपेटाइटिस, इंट्रा हेपेटिक कॉलिसिस्टाइटिस के अंदर देखा जाता है. ठीक है, तीसरा आता है कॉन्जुगेटेड और ऑब्स्ट्रक्टिव बिलिरुबिन. ये पोस्ट हेपेटिक क्लास ऑफ जॉन्डिस के अंदर आता है. पोस्ट हेपेटिक क्लास ऑफ जॉन्डिस के अंदर कॉन्जुगेटेड. ये एक्स्ट्रा हेपेटिक कॉलिसिस्टाइटिस, गॉलस्टोन्स, ट्यूमर्स ऑफ द बाइल डक्ट, कार्सिनोमा ऑफ पैनक्रियास, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट इन पोर्ट्स एंड हेपेटाइटिस, इन सब के अंदर देखा जाता है. नेक्स्ट, विजुअलाइजेशन ऑफ द कैपिलरी पल्सेशंस अपॉन लाइट कंप्रेशन अप्लाइड टू द टिप ऑफ द फिंगरनेल बेड seen in aortic insufficiency cases is known as what sign? It is known as Kunicke sign. Kunicke sign. Next, which among the following are not respiratory centers? जो lateral group of centers होते हैं, they are not respiratory unit centers. कौन कौन से होते हैं? डॉर्सल ग्रुप ऑफ सेंटर्स होते हैं, वेंट्रल ग्रुप ऑफ सेंटर्स होते हैं, पोंटाइन ग्रुप ऑफ सेंटर्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं. ठीक है, बट द lateral group is not a respiratory center. The respiratory center is composed of 3 distinct neuronal groups in the brain: the dorsal respiratory group of the nucleus,
that and nucleus tractus solitaris, ventral in the medulla and the pontine respiratory group in the pons. Pontine pons में वेंट्रल जो होता है वो मेडुला में होता है और डॉर्सल जो होता है वो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटारिस में होता है. नेक्स्ट, ब्रॉडमैन्स एरिया 4 ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? ब्रॉडमैन एरिया 4 ये मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, ब्रॉड मैन, ठीक है, मैन को ब्रॉड करवा रहा है बेसिकली, ये मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है. ब्रॉडमैन एरिया 4 जो होता है वो प्राइमरी ब्रॉडमैन एरिया 4 it is a primary motor cortex pre-central gyrus involved in execution of movement. Brodmann area 5 जो होता है that is sensory motor association होती है, superior parietal lobule के अंदर located होता है, ठीक है, and it is an area for sensory input. sensory input के लिए Brodmann area आ जाता है 5, area number 5 for sensory input. Brodmann area number 6 जो है ये प्री मोटर कॉर्टेक्स और सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स में हेल्प करता है टू कंट्रोल एंड द प्लान द मूवमेंट्स. इट विल हेल्प टू कंट्रोल एंड प्लान द मूवमेंट्स. ओके, ब्रॉडमैन एरिया 6. नेक्स्ट, पॉसिबल फैक्टर्स विच कैन स्क्यू रिजल्ट्स इन एनी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी आर ऑल और व्हाट? स्क्यूइंग हमारे पास स्मोकिंग वजह से हो सकती है, अल्कोहल की वजह से हो सकती है, या ड्रग एब्यूज़ की वजह से हो सकती है, या ड्रग यूजेज की वजह से हो सकती है स्क्यूइंग. ठीक है, स्क्यूइंग का मतलब होता है asymmetric or unequal distribution of a normally balanced variable. Next question is ameloblastoma arises from what? Ameloblastoma, it arises from epithelium of dental lamina. It arises from epithelium of odontogenic cyst and it also arises from epithelium of enamel organ. ठीक है, तीनों से ये अराइज करता है. Ameloblastoma basically is a benign odontogenic tumor generally present in the jawbone and it originates from the residual epithelium of the tooth germ layer, epithelium of the odontogenic cyst, stratified squamous epithelium and the epithelium of enamel organ. इन तीनों से अराइज करता है. Next, M spike is characteristically seen in multiple myeloma in course of which diagnostic test? M spike जो है वो प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में मल्टीपल माइलोमा के अंदर देखी जाती है. A monoclonal M spike और paraprotein spike on serum protein analysis or serum protein electrophoresis, it is a frequent finding in the general population. Typically, it is a pathognomonic sign of an asymptomatic pre-malignant condition called as monoclonal gammopathy of undetermined significance. MGUS के अंदर ये चीज़ जो है वो एक pathognomonic sign की तरह डिटेक्ट होती है. That is monoclonal gammopathy of undetermined significance. High levels of M proteins indicate that a person have multiple myeloma. However, high M protein levels may also be a sign of several other plasma cell disorders, including solitary plasmacytoma, smoldering multiple myeloma और plasmacytoma, solitary plasmacytoma के अंदर भी ये चीज़ देखी जाती है. M proteins, high level of M proteins. Next, natural or pleasant width to length ratio of an incisor is what? 75 to 85% जो होती है वो natural pleasant ratio होती है of an incisor. Length to width ratio of an incisor. Okay. The pleasant width to length proportion for a maxillary central incisor is 75 to 85%. The higher width to height ratio means squarer is the tooth and the lower means rectangular is the tooth. ठीक है. Next, which of the following is true regarding McCall festoons? McCall festoon जो होते हैं वो जिंजाइवल रिसेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं और इसके साथ साथ ये थिकन्ड रोल्ड जिंजाइवल बैंड की तरह दिखाई देते हैं. दे आर एसोसिएटेड विद द जिंजाइवल रिसेशंस एंड जो थिकन्ड बैंड की तरह दिखाई देंगे. द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रिसेशन आर न्यूमरस. सबसे पहले जिंजाइवल रिसेशंस इज यूजुअली बिगिनिंग विद द ग्रेजुअल अपाइकल माइग्रेशन ऑफ द एंटायर फेशियल एस्पेक्ट ऑफ द जिंजाइवा रिवीलिंग द CEJ. ओके, CEJ ऑफ द टूथ फेस विजिबल. अब दांत का CEJ विजिबल है, उसके साथ साथ उसका थोड़ा थोड़ा रूट का सरफेस भी विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है. इसमें जो साइड में जिंजाइवा होता है वो हल्का सा ऐसे क्लेफ्ट की तरह दिखाई दे रहा होता है. दैट इज नोन एज अ स्टिलमैन्स क्लेफ्ट. Alright, less frequently the first sign of recession is the relatively rapid formation of a small groove in gingiva called as the so-called Stillman cleft, STILLMAN cleft. Okay, this Stillman cleft, it pronounced and expand into much more recession. As a consequence of this recession, the remaining attached gingiva may become thickened and rolled
ठीक है। जब ये और ज़्यादा प्रोग्रेस करता है तो रिमेनिंग अटैच जिंजाइवा जो होता है वो थिकन कर जाता है और रोल कर जाता है खुद ही के ऊपर, और एक नॉन इन्फ्लामेटरी फाइब्रोटिक रिस्पॉन्स बॉडी जनरेट करती है, दैट इज नोन एज मैकॉल फेस्टून्स। ओके, नॉन इन्फ्लामेटरी फाइब्रोटिक रिस्पॉन्स। Next, the zone that separates the plexus of Rashko from the odontoblast is known as what zone? It is known as cell-free zone of Weil. Cell-free zone of Weil जो है वो separate करती है plexus of Rashko को from the odontoblastic zone. ठीक है। The plexus of Rashko monitors painful sensations. Plexus of Rashko जो है वो painful sensations को monitor करते हैं. By the virtue of their peptide content, they also play important function in inflammatory events and subsequent tissue repair. The C fibers, they typically terminate in the pulp tissue proper, either in the free nerve endings or as a branch around blood vessels. Sensory nerve fibers that originate from the inferior and the superior alveolar nerves innervate the odontoblastic layer of the pulp cavity. These nerves enter the tooth through apical foramen as myelinated nerve bundles. They branch to form subodontoblastic nerve plexus of Rashko, which is separated from the odontoblast by cell-free zone of Weil. This plexus lies between the cell-free and cell-rich zone of the pulp. ठीक है, ये जो plexus of Rashko है ये lie करता है between the cell-free zone and the cell-rich zone of the pulp. Next, regarding supernumerary teeth, all of the following are true except, because supernumerary teeth are associated with hyperactivity of dental lamina. It is true. They may have a genetic predisposition, true. They are strongly associated with cleft palate. Yes, supernumerary teeth are strongly associated with cleft palate. ठीक है। और चौथी जो गलत स्टेटमेंट है, they are same as hyperdontia. ना, supernumerary teeth और hyperdontia totally अलग चीज़ें, ठीक है। If a person has one or more teeth that are additional to the typical test set of the teeth, the person is said to have hyperdontia. And the additional teeth are known as supernumerary teeth. ठीक है। टीथ को हम बोलते हैं सुपरन्यूमरी टीथ, और जो एक्स्ट्रा निकले दैट इज नोन एज हाइपरडोंसिया। ठीक है। नोट दैट इफ अ पर्सन that it is possible for a person to have a supernumerary tooth without having more than 20 baby teeth or 32 permanent teeth. Okay, supernumerary teeth show association with developmental disorders such as cleft lip and cleft palate. Cleidocranial dysostosis, Gardner syndrome, less commonly Ehlers-Danlos syndrome, Fabry-Anderson syndrome, chondroectodermal dysplasia, incontinentia pigmenti and trichorhinopharyngeal syndrome. इन सब के अंदर सुपरन्यूमरी देखे जाते हैं. Various studies have claimed that they are a result of hyperactivity of the dental lamina, where the epithelial cells that form supernumerary teeth remain for a longer period. Other studies show that the main etiological factor is genetic predisposition having to do with the disorder associated with the dominant autosomal gene. Next, the ideal brushing technique to be used by the patient undergoing orthodontic treatment is what technique? Charter technique use करनी होती है orthodontic treatment में, charter brushing tooth technique method. ठीक है, that's the ideal method. Charter technique में क्या होता है कि place the toothbrush away from the gums, place lightly and vibrate the brush gently and count 10 strokes. 10 stroke काउंट करने होते हैं हर एक दांत के ऊपर, और रिपोजिशन करना होता है ब्रश को, और फिर सभी दांतों के लिए रिपीट करना होता है. नेक्स्ट, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इज व्हाट? प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, इट इज अ मायोएपिथेलियल और डक्टल रिजर्व सेल ओरिजिन. प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा इज द मोस्ट कॉमन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर. मोस्ट कॉमन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर कौन सा है? प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा. इट इज ऑल्सो नोन एज बेनाइन मिक्स्ड ट्यूमर बिकॉज of its dual origin from epithelial and myoepithelial elements. The duct's reserve cells is believed to be one of the most important originating factors in this pleomorphic adenoma formation. Next question is, nitroaromatic antibiotics are effective particularly against what? Nitroaromatic antibiotics जो है वो particularly anaerobes के against effective होते हैं. Against anaerobes. Nitroaromatic antibiotics show activity against anaerobic bacteria and anaerobic parasites. ठीक है. Particularly finding the use of treatment in Helicobacter pylori infections, tuberculosis, trichomoniasis, human African trypanosomiasis, Chagas disease and leishmaniasis. इनके अंदर देखे जाते हैं नाइट्रो एरोमेटिक एंटीबायोटिक्स का यूज. नेक्स्ट कंडीशन इज द स्ट्रक्चर दैट इज एट मैक्सिमम रिस्क ऑफ बीइंग इंजर्ड व्हाइल परफॉर्मिंग अ गिलीज टेम्पोरल अप्रोच. कौन सी अप्रोच? गिलीज टेम्पोरल अप्रोच फॉर रिडक्शन ऑफ zygomatic आर्च. कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इजीली हम इंजर कर सकते हैं? तो आंसर सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी. ठीक है. द गिलीज टेम्पोरल अप्रोच रिक्वायर्स अ टेम्पोरल incision 2 cm in length
made 2.5 सेंटीमीटर सुपीरियर एंड एंटीरियर टू द हेलिक्स विद द हेयर लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है टेम्पोरल इंसिजन इज मेड एंड इज टेकन टू बी केयर सो एज टू अवॉइड एनी इंजरी टू सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। कान ये जो पुरपुड़ी होती है वहाँ पे हम इंसिजन देते हैं और यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी का जो है वो इंजर करने से हमें बचाना होता है गिलीज टेम्पोरल अप्रोच में। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जाइगोमैटिक आर्च का रिडक्शन करना होता है उस कंडीशन में। नेक्स्ट, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट आइडियल क्राउन फॉर द बेस्ट कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक रिजल्ट्स। कॉस्मेटिक और एस्थेटिक रिजल्ट्स के लिए बेस्ट जो होता है दैट इज लिथियम डाइसिलिकेट सिरेमिक। लिथियम डाइसिलिकेट सिरेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड फॉर ऑर्थोडोंटिक बॉडीली मूवमेंट ऑफ अ सेंट्रल इंसाइजर इज हाउ मच। सेंट्रल इंसाइजर की ऑर्थोडोंटिक बॉडीली मूवमेंट के लिए हमें जो फोर्स चाहिए होती है दैट इज इक्वल टू 80 ग्राम्स फोर्स चाहिए होती है। 80 ग्राम्स ऑफ कॉन्टिन्यूस बैलेंस फोर्स चाहिए होगी, ठीक है। देर आर रेंज ऑफ फोर्सेज फॉर टाइप ऑफ मूवमेंट। अगर टाइप ऑफ मूवमेंट में हमारे पास फर्स्ट मूवमेंट दैट इज टिपिंग है, टिपिंग मूवमेंट के लिए हमारे को चाहिए होती है 35 to 60 ग्राम ऑफ फोर्स। बॉडीली मूवमेंट के लिए चाहिए होती है 70 to 120 ग्राम ऑफ फोर्स। बॉडीली के लिए 70 to 120 ग्राम ऑफ फोर्स, ठीक है। मतलब हमें मैक्सिमम जो फोर्स देनी है वो बॉडीली मूवमेंट के लिए दे सकते हैं। अगली आती है रूट अप राइटिंग। रूट को अपराइट करना है हमने, ठीक है। मतलब टॉर्किंग फोर्स देंगे। टॉर्किंग फोर्स देते हैं हम 50 to 100 ग्राम ऑफ फोर्स, ठीक है। जो बॉडीली मूवमेंट ये हमने बात की वहाँ पे ट्रांसलेशन हो रही है, पूरे दांत की ट्रांसलेशन हो रही है, वो अपनी पूरी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगती है। रोटेशन के लिए हमारे को फोर्स चाहिए होती है 35 to 60 ग्राम ऑफ फोर्स। रोटेशन, एक्सट्रूजन और टिपिंग के लिए बराबर फोर्स लगती है, दैट इज 35 to 60 ग्राम ऑफ फोर्स। एक्सट्रूजन के लिए भी 35 to 60 ग्राम ऑफ फोर्स। सबसे कम फोर्स जो लगती है दैट इज फॉर इंट्रूजन। इंट्रूजन के लिए सबसे कम फोर्स लगती है दैट इज 10 to 20 ग्राम ऑफ फोर्स। इंट्रूजन के लिए सबसे कम, ट्रांसलेशन जो बॉडीली मूवमेंट है उसके लिए सबसे ज़्यादा, और बॉडीली के कम हमारे पास लगती है टॉर्क जो कि अपराइटिंग मूवमेंट के लिए होती है। उसके बाद टिपिंग, रोटेशन और एक्सट्रूजन में बराबर फोर्स लगती है। टिपिंग, रोटेशन, एक्सट्रूजन में बराबर फोर्स लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीजन ऑफ डिस्कलरेशन ऑफ डेंचर विच इज मेड फ्रॉम सेल्फ क्योर्ड रेजिन इज व्हाट। The most common problem associated with acrylic resins dentures is the color instability that may affect the patient's acceptance, ठीक है। Discoloration of the acrylic resin can result in aesthetic problems. Acrylic resins are subjected to have sorption, absorption and adsorption। तीन चीज़ें होती हैं, sorption हो सकता है, adsorption हो सकता है, absorption हो सकता है of the material and also the contact media जो कि contact में है, ठीक है। The absorption of the liquids deepens on the environmental conditions, depends upon the environmental condition. Also, if the solution that a patient is taking is pigmented, discoloration or deterioration of the color, loosening of translucency are possible, ठीक है। Discoloration of the denture base polymers may be caused by oxidation of the accelerator, and if it is of tertiary amine type, as in case of self-cure autopolymerizing acrylic resin, or by penetration of colored solutions into the denture. Color change of the denture base material during exposure to the oral fluids and denture cleaners also have been reported. Next, a patient under treatment of syphilis should be regularly tested for what? अगर syphilis का patient है, he or she should be regularly tested for RPR and VDRL, ठीक है। RPR और VDRL के लिए उसको टेस्ट करवाने पड़ते हैं। RPR is rapid plasma reagent और VDRL होता है venereal disease research laboratory test, ठीक है। RPR जो है it is a card test that is presumptive serological screening test for syphilis. The serum of a person of syphilis contains non-specific anti-lipid antibody termed as the reagent. इसकी जो बॉडी है उसके अंदर जो सीरम है, सीरम के अंदर रिएजेंट नाम का एक एंटीबॉडी मिलता है, दैट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक एंटीलिपिड एंटीबॉडी विच इज़ नॉट फाउंड इन नॉर्मल सीरम। और ये रिएजेंट ही टेस्ट पॉजिटिव अगर देता है तो इट इंडिकेट्स सिफिलिस, ठीक है। क्लिनिकल एंड सीरोलॉजिकल इवैल्यूएशन शुड बी परफॉर्म्ड एट 6 to 12 months आफ्टर ट्रीटमेंट। मोर फ्रीक्वेंटली इवैल्यूएशन माइट बी prudent if opportunity for follow-up is uncertain or if repeated infection is clinical concern. Patient with early syphilis should be monitored with repeated RPR test, ठीक है, and VDRL test at 6 month and 12 month. एक 6 महीने पे करवाओगे, एक 12 महीने पे करवाओगे। Next, a patient reports with the intruded central incisor following a fall from the cycle. IOPR जब हमने लिया तो it shows elongation of the root length of 2-1, जो 2-1 है दैट इज़ सेकेंड क्वाड्रेंट का फर्स्ट, उसमें जो है वो लॉन्गेशन आ गई है हमारे
रेडियोग्राफ के अंदर, दिस कुड इंडिकेट व्हाट, दिस कुड इंडिकेट द लिंगुअल इंक्लिनेशन, कि दांत जो है वो लिंगुअली चला गया है। अगर बक्कली जाएगा तो वो शॉर्टन हो जाएगा, ठीक है। अगर लिंगुअली इंक्लाइन हो रहा है तो इट विल इलोंगेट ऑन द रेडियोग्राफ। नेक्स्ट, a 2-year-old child fell off and the tooth gets intruded. What is the management in this case? इस केस में you will take an IOPAR, ठीक है, और उसके बाद you will decide what will you do, ठीक है। Spontaneous eruption is a treatment option of intruded primary teeth in absence of damage to permanent teeth. Surgical repositioning of the intruded primary teeth has also shown a viable alternative treatment modality. Extraction to be performed if the complications develop or they will affect the permanent tooth bud, ठीक है। अगर हमारा जो है परमानेंट टूथ बड सही है बिल्कुल, तो वी विल गो फॉर वेट एंड वॉच, ठीक है। मतलब उससे पहले हमें IOP लेना पड़ेगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे। हाइपोक्सिया, हाइपोसेलुलैरिटी एंड हाइपोवैस्कुलैरिटी आर सीन इन। हाइपोक्सिया, हाइपोसेलुलैरिटी और हाइपोवैस्कुलैरिटी ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस के अंदर देखी जाती है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द प्रोग्रेसिव हाइपोक्सिया, हाइपोवैस्कुलराइजेशन एंड हाइपोसेलुलैरिटी आर ऑब्जर्व्ड इन द अफेक्टेड बोन in osteonephrosis. Next, a 3-year-old child is diagnosed with hypomineralized primary second molars. Hypomineralized primary second molars presented with creamy white, yellow or brown opacities, post-eruption enamel breakdown, hypersensitivity and atypical carious lesion formation. What is the treatment plan in this case? इस केस में आप स्टेनलेस स्टील क्राउन दोगे, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ hypomineralized primary second molars has been described as an important risk factor for caries and early loss of primary second molars. Early loss of primary second molars को बचाने के लिए हम जो है उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन देने के काम करेंगे, कोई भी प्रोटेक्शन देंगे। Because hypomineralized tissue of enamel is porous and brittle and causes enlargement of sensitivity to thermal and mechanical stimuli, causing discomfort during teeth brushing. Hence, protecting the tooth with the crown is the best option in this case. Next, mandibular second molar in a pediatric patient is grossly decayed. However, the patient has an erupted premolar. What will be the treatment plan? तो extraction of जो second जो decayed molar है हमारा, ठीक है, deciduous molar जो है उसका extraction करना better रहेगा। Because अगर एक हमारा प्रीमोलर इरप्ट कर गया है तो दूसरा भी इरप्टिंग की स्टेज पे आ चुका है, मतलब उतनी एज तो हो चुकी है। एक्सट्रैक्शन एंड लीविंग इट एज will cause erupting of the natural premolar below it. Next, which of the statement about trigeminal nerve is false? तो पहले true statements के बारे में बात करते हैं। Trigeminal nerve provides motor innervation of the muscles of mastication and sensory innervation to anterior 2/3 of the tongue. Muscles of mastication को motor innervation provide करता है और जो anterior 2/3 of the tongue है उसको sensory innervation provide करता है। Trigeminal neuralgia occurs due to compression of the brain of the nerve near the brain stem. Brain stem के अंदर जो nerve है trigeminal nerve, उसका जो कंप्रेशन अगर हो जाता है तो वहाँ पर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया इनिशिएट हो जाता है। नेक्स्ट, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन इज अ क्रेसेंट शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द मैकल्स केव विद इन द मिडल क्रेनियल फोसा। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन एक क्रेसेंट शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि मैकल्स केव के अंदर प्रेजेंट होता है इन द मिडल क्रेनियल फोसा। ये तीनों स्टेटमेंट्स जो थी वो बिल्कुल सही थी। जो गलत स्टेटमेंट है दैट ट्राइजेमिनल नर्व ओरिजिनेट्स एट पोंटोमेडुलरी जंक्शन, नहीं, इट डज नॉट ओरिजिनेट एट द पोंटोमेडुलरी जंक्शन। रादर ट्राइजेमिनल नर्व इमर्जेस एट द पोंस प्रॉपर। कहाँ? पॉन्स प्रॉपर पे इमर्ज करती है। दैट इज द जंक्शन ऑफ पॉन्स एंड मिडल सेरेब्रल पेडंकल क्रेनियल नर्व से मर्जिंग एट अ पोंटोमेडुलरी जंक्शन, ठीक है। दैट इज द जंक्शन एट द पॉन्स एंड मिडल क्रेनियल पेडंकल क्रेनियल नर्व से मर्जिंग एट द पोंटोमेडुलरी जंक्शन। द एब्सिसेंस नर्व जो कि क्रेनियल नर्व 6 होती है, फेशियल नर्व क्रेनियल नर्व 7 जो होती है वो पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे इमर्ज करती है। इसके साथ साथ वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व भी पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे इमर्ज करती है, लेकिन ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो पॉन्स प्रॉपर में इमर्ज करती है। Next question is normally painless. This condition is marked by abnormal localized bone hardening usually caused by inflammation and infection. आपको एक रेडियोग्राफ दे रखा है, टूथ के नीचे आपको एक रेडियो ओपेसिटी दिखा रखी है, स्लाइटली रेडियोपेक देन द सराउंडिंग एल्वियोलर बोन, ठीक है, लेकिन इसमें कोई पेन नहीं है, नॉर्मलाइज कंडीशन है, abnormal hardening of the bone हो गई है। तो what is it? It is known as condensing osteitis. Condensing osteitis consists of abnormal bone growth and lesions that may result from tooth inflammation or tooth infection. It is also known as focal sclerosing osteitis. The dental condition is known for causing hardening of the bone, denser bones, which primarily affect the molars in the jaw area. Next, what is the role of rosin in zinc oxide eugenol paste? Rosins का क्या काम होता है? Rosin, they increase the rate of reaction. Rosin will increase the rate of setting time and improve the cohesion. Rate of reaction को increase कर देता है basically.
नेक्स्ट, विच इज़ एन एक्सट्रिंजेंट अमंग दीज? 4 ऑप्शन दे रखिए, डायनिक एसिड, फिनॉल, यूजिनॉल, जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड इज़ एन एस्ट्रिंजेंट, ठीक है, इट इज़ एन एस्ट्रिंजेंट और डिसेंसिटाइजर की तरह भी यूज होता है फॉर द डेंटिन। नेक्स्ट, एज एस्टिमेशन मेथड बेस्ड अपॉन 8 स्टेजेस ऑफ इरप्शन वाज गिवन बाय हु? 8 स्टेजेस ऑफ इरप्शन वाज गिवन बाय डेमिजारेंस, ठीक है, इसको हम डेमिजारेंस मेथड भी बोलते हैं। डेमिजारेन मेथड में फर्स्ट जो स्टेज होती है उसमें कस्प पे मिनरलाइज होते हैं लेकिन कोएलाइज नहीं किए होते। सेकंड में मिनरलाइज कस्प आर यूनाइटेड एंड दे मैच्योर कॉर्नरली, ठीक है, ताकि उसकी कॉर्नल मॉर्फोलॉजी वेल डिफाइन हो जाए। थर्ड में क्या होता है कि द क्राउन इज अबाउट हाफ फॉर्म्ड, क्राउन इज हाफ फॉर्म्ड एंड द पल्प चैम्बर इज एविडेंट एंड डेंटिनल डिपोजिशन इज अकरिंग। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, क्राउन फॉर्मेशन इज कंप्लीट, डेंटिनो एनामल जंक्शन एंड द पल्प चैम्बर स्टार्ट टू बिगन, ठीक है, वो बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ स्टेज में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ इंटर रेडिकुलर बाइफर्केशन हैज़ बिगन, रूट इज लेस दैन द क्राउन लेंथ, ठीक है। फिफ्थ स्टेज में जो होती है रूट जो होती है वो लेस देन द क्राउन लेंथ होती है। सिक्स स्टेज में रूट लेंथ इज एटलीस्ट ग्रेटर देन द क्राउन लेंथ एंड रूट हैव फनल शेप एंडिंग्स। उसके बाद फिफ्थ सिक्स सेवन्थ स्टेप में हमारे पास रूट वॉल आर पैरेलल एंड अपाइसिस रिमेन ओपन, और एट्थ स्टेप में जो अपाइसिस हैं वो कम्प्लीटली क्लोज कर जाते हैं। उसके साथ पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन जो है वो यूनिफॉर्मली रूट के अराउंड बन जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट कैनाल क्लीनिंग एजेंट? सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है, जाइलिन होता है, EDTA इज अ रूट कैनाल क्लीनिंग एजेंट, ये तीनों थे। लेकिन एंडोरेस जो है वो रूट कैनाल सीलर होता है। एंडोरेस जो चौथा ऑप्शन दिया है, एंडोरेस, इट इज़ अ रूट कैनाल सीलर, इट इज़ नॉट अ रूट कैनाल क्लीनिंग एजेंट। नेक्स्ट, नेम द मीडिया that has a general purpose of liquid medium supporting growth of wide range of non-fastidious organisms. Non-fastidious organisms को जो ग्रो करने में हेल्प करेगा दैट इज़ न्यूट्रिएंट अगार। इसमें आपको एक इमेज दे रखी होगी जिसमें कि एक डैम्पेंडेशिया डिश के अंदर आपको न्यूट्रिएंट अगार की फोटो दे रखी है। न्यूट्रिएंट अगार इज जनरल पर्पस मीडियम दैट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नॉन फाइब्रस ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिएंट अगार इज वेरी पॉपुलर बिकॉज इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई एंड hence contains many type of nutrients necessary for the growth of bacteria. Next question is, patient complained of diffuse crampy abdominal pain, fever was intermittent, shortness of breath was there, giddiness and easy fatigability was there. Abdominal examination revealed mild tenderness over the right iliac fossa. On deep palpation, ulcers were multiple, avoid variable sized, punched out ulcers, identify the condition. और एक हाथ की कटी हुई फोटो दे रखी है जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक अल्सर दिखाई दे रहा है उसके अंदर, तो इसकी आंसर इज टाइफॉइड abdominal ulcer, ठीक है। इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग इन टाइफॉइड फीवर यूजुअली अकर्स फ्रॉम द अल्सर्स इन द इलियम और द proximal colon and it is most commonly seen in colonoscopic manifestations that are of multiple variable size punched out ulceration, ठीक है। punched out ulceration आपको किसी भी इमेज में दिखाई होगी इस क्वेश्चन के साथ, यहाँ पे इंटेस्टाइन दिखाई है, उसमें punched out ulceration दिखा रखी है, ठीक है, उससे आइडेंटिफाई करना है, इट इज़ रिलेटेड टू द टाइफॉइड। नेक्स्ट, व्हाट इज सीन इन ऑस्टियोमलेशिया? ऑस्टियोमलेशिया में क्या क्या चीज़ दिखाई देती है? उसमें नॉर्मल ऑस्टियोइड दिखाई देता है प्लस देयर इज अबनॉर्मल मिनरलाइजेशन, ऑलराइट, नॉर्मल ऑस्टियोइड प्लस अबनॉर्मल मिनरलाइजेशन। ऑस्टियोमलेशिया इज अ मेटाबॉलिक बोन डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय impaired mineralization of bone matrix. Impaired mineralization of the bone matrix. Bone creation occurs by deposition of hydroxyapatite crystals. जो बोन क्रिएशन है वो बाय डिपोजिशन ऑफ हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स होती है ऑन द ऑस्टियोइड मैट्रिक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट लॉ ऑफ ऑरिफिस? तो पहले करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ सिमेट्री आती है, एक्सेप्ट द फॉर द मैक्सिलरी मोलर्स ऑल द ऑरिफिसेस ऑफ द कैनाल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम लाइन ड्रॉन फ्रॉम मेसियोडिस्टल डायरेक्शन थ्रू द सेंटर ऑफ पल्प चैम्बर फ्लोर, ठीक है। अगर हम पल्प चैम्बर के फ्लोर के हिसाब से सारी चीज़ सारे इनका डायमेंशन नापें तो वो इक्विडिस्टेंट होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द लाइन ड्रॉन इन मेसियोडिस्टल डायरेक्शन। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एक्सेप्ट फॉर द मैक्सिलरी मोलर्स द ऑरिफिसेस ऑफ द कैनाल लाई ऑन अ परपेंडिकुलर लाइन, दे विल लाई ऑन अ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, टू लाइन ड्रॉन इन अ मेसियोडिस्टल डायरेक्शन थ्रू द सेंटर ऑफ द पल्प चैम्बर फ्लोर। तीसरा है लॉ ऑफ कलर चेंज, द कलर चेंज ऑफ द पल्प चेम्बर फ्लोर इज ऑलवेज डार्कर दैन द वॉल्स। जो पल्प चेम्बर का फ्लोर होता है वो हमेशा डार्कर होता है दैन द वॉल्स। चौथा हमारे पास जो ऑरिफिस लोकेशन का लॉ है दैट इज द ऑरिफिस ऑफ द रूट कैनाल्स आर ऑलवेज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ वॉल्स एंड फ्लोर, ठीक है। जहाँ वॉल और फ्लोर का जंक्शन बनता है वहाँ पर हमारे पास ऑरिफिस सबसे ज़्यादा
लोकेटेड होने के चांसेस रहते हैं। लॉ ऑफ ऑरिफिस लोकेशन 2, द ऑरिफिस ऑफ द रूट कैनाल आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ फ्लोर वॉल जंक्शन, they are located at an angle or at the vertices of floor wall junction. After the floor wall junction is clearly seen, all the laws of symmetry and orifice location can be used to identify the exact position and number of orifice. ठीक है, इसमें बेसिकली रूल आउट करके आप आंसर निकालोगे। नेक्स्ट, सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज व्हाट? सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू डिटेक्ट अ ट्रू पॉजिटिव। Ability of a screening test to detect a true positive is known as sensitivity. The sensitivity of a screening test can be described in a variety of ways, typically such as sensitivity being ability of the screening test to detect true positive, being based upon true positive rate, reflecting a test's ability to correctly identify all the people who have the condition. If 100% sensitivity is there, it means that identifying all the people with the condition of interest by those people testing positive on the test. मतलब अगर सेंसिटिविटी 100% है तो जितने भी लोगों का हम टेस्ट लेंगे उसमें पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। शर्त ये है कि वो लोग पॉजिटिव सच में भी हों, ठीक है, दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी। नेक्स्ट, घोन्स फोकस इज सीन इन व्हाट? घोन्स फोकस जो है वो प्राइमरी टीबी के अंदर देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर देखा जाता है। घोन कम्प्लेक्स इज अ रेडियोग्राफिकली और रेडियोलॉजिकली डिटेक्टेबल फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस एंड वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एंटन घोन। ही वाज एन ऑस्ट्रियन पैथोलॉजिस्ट। ऑस्ट्रियन पैथोलॉजिस्ट था, ठीक है, ऑस्ट्रियन जो जर्मनी के पास है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ठीक है। It refers to the presence of pulmonary lesion known as Ghon's lesion or Ghon's focus along with the ipsilateral hilar lymph node involvement. Next, mixed dental analysis of a 7-year-old when central and lateral incisors are not erupted is done by what? It is done by Hakaba analysis. Hakaba analysis. ये analysis किया जाता है, मतलब usually performed on the mandibular arch. One of the main preferences of orthodontic treatment planning, the mixed dentition analysis is basis for diagnosis and treatment of treatment planning in this children, ठीक है, जिनमें incisors erupt नहीं किए, and it takes into account that the deciduous canines and molars are replaced by the teeth with the smaller mesiodistal width. This difference in the tooth size can be used to prevent or intercept future malocclusions. हम मतलब पुराना जितना भी डेंटेशन का साइज है उसके बेसिस पे फ्यूचर मालोक्लूजन को प्रिडिक्ट करते हैं। हकाबा मेथड यूजेस बोथ रेडियोग्राफ एंड कास्ट। क्या क्या यूज़ करता है? इट यूजेस बोथ रेडियोग्राफ एंड कास्ट। सिंस द इंसाइजर्स आर नॉट इरप्टेड, रेडियोग्राफिक मेथड विल बी द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। Next, punched out ulcers are seen in what? Punched out ulcers are seen in syphilis. Okay, syphilis के अंदर देखे जाते हैं। punched out ulcers syphilis के अंदर देखे जाते हैं। rolled out margins कार्सिनोमा के अंदर देखे जाते हैं अल्सर के, ठीक है। अंडर माइंड अगर अल्सर दिखाई दे रहा है, अंडर माइंड मतलब अंदर की तरफ घुस रहा है वो, तो वो टीबी के अंदर देखा जाता है। रेज्ड परली बेड अल्सर जो है वो रोडेंट अल्सर होता है। रेज्ड परली बेड अल्सर इज रोडेंट अल्सर, ठीक। उसके बाद आती है शेल्विंग एज। शेल्विंग एज इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज में देखा जाता है। शेल्विंग एज अल्सर मतलब जैसे शेल्फ बनती जाती है तो एज एक शेल्फ की तरह बन जाती है, वो ज़्यादातर नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज में देखा जाता है। नेक्स्ट, विंग्ड इंसाइजर्स मतलब इंसाइजर आपके बाहर को ऐसे विंग हो चुके हैं, are seen commonly due to what? They are seen commonly due to ethnicity and it occurs on the permanent dentation. American Indians, the distal margins of the incisors are rotated in a labial or lingual direction. The lingual rotation has been termed counter winging by Dahlberg, whereas the labial rotation is simply winging. Rotation may be observed on one or both the incisors and are indicated by the use of adjectives unilateral and bilateral इन कॉन्जुगेशन विद द काउंटर विंगिंग ऑफ और विंगिंग डिज़ाइन। मतलब इंसाइजर जो है वो बाहर की तरफ हमारे निकले हुए होते हैं ऐसे करके। ये अमेरिकन इंडियंस में ज़्यादा देखा जाता है, मतलब इस इज एथनिक टू अमेरिकन इंडियंस एंड एक्टर्स ऑन द परमानेंट डेंटिशन मेनली। नेक्स्ट, मोड ऑफ एक्शन ऑफ प्रोपाइल थायरोइडसल इन थायराइड स्टॉर्म इज व्हाट? थायराइड स्टॉर्म के केसेस में प्रोपाइल थायरोइडसल जो है वो इनहिबिट कर देता है पेरिफेरल डी आयोडिनेज एंजाइम को। पेरिफेरल डी आयोडिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। प्रोपाइल थायरोइडसल इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू थायराइड हार्मोन इन द थायराइड ग्लैंड। न्यू थायराइड हार्मोन जो होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, उसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करा देता है। इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम थायराइड पेरोक्सीडेज व्हिच यूजुअली कन्वर्ट्स आयोडाइड इनटू आयोडीन मॉलिक्यूल एंड
incorporates the iodine molecule into amino acid tyrosine. ठीक है, नेक्स्ट रेडियोग्राफ आपको दिखाया हुआ है खाली, उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे आपने जज करना है कि क्या चीज़ है। उसमें स्केलेटल क्लास 2 दिख रहा है विद मैक्सिलरी प्रोट्रूजन एंड मैंडिबुलर रेट्रोग्नाथिज्म। ठीक है, लिटरल सेफ दे रखे हैं आपको। स्केलेटल क्लास 2 विद फॉरवर्डली प्लेस्ड मैक्सिला एंड बैकवर्डली प्लेस्ड मैंडिबल, शॉर्टर मैंडिबुलर लेंथ इन रिलेशन टू मैक्सिलरी लेंथ, प्रोक्लाइंड अपर एंड लोअर एंटीरियर्स एंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पैटर्न। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ आपने डिस्क्राइब करना है उसको। टर्नर्स हाइपोप्लेजिया, environmental enamel hypoplasia is mostly seen in where? ठीक है, टर्नर्स हाइपोप्लेजिया कहाँ दिखाई देता है सबसे ज़्यादा? टर्नर हाइपोप्लेजिया दिखाई देता है इन परमानेंट मैक्सिलरी इंसाइजर्स एंड इन परमानेंट मैक्सिलरी और मैंडिबुलर प्रीमोलर्स। ओके, environmental enamel hypoplasia or hypomineralization due to environmental factors, it is also called as Turner's hypoplasia or hypomineralization, Turner's hypomineralization, and it is most commonly seen in permanent maxillary incisors or upper and lower premolars. Next below is multicystic lesion. कोई भी multicystic lesion imagine करना है जिसकी faster growth है and similar histology to lateral periodontal cyst. Similar histology to lateral periodontal cyst. However, recurrence range is between 15 to 33%. That is higher than lateral periodontal cyst. तो इसका कौन सा आता है? ये लेटरल पेरिडोंटल सिस्ट के जैसा ही है पूरा पूरा, लेकिन लेटरल पेरिडोंटल सिस्ट नहीं है, उससे ज़्यादा हायर रेट ऑफ ऑकरेंस है। इट इज़ अ बॉटरॉइड ओडोंटोजेनिक सिस्ट रिपोर्टेड बाय वेदर्स एंड वॉल्ड्रन. It is a polycystic variant of the lateral periodontal cyst because the specimen resembles a cluster of grapes. इसमें cluster of grapes की तरह आपको specimen resemble करेगा. It is a non-inflammatory odontogenic cyst which has a striking predilection for mandibular, canine and premolar region. Next, all of the following are the clinical features of blood dyscrasias except, देखो blood dyscrasias में example आता है acute leukemia, anemia आ सकता है या hemophilia आ सकता है. Acute leukemia में there is bleeding from the gums, there is bone pain, there is fever, frequent infections, lumps caused by swollen lymph nodes. Anemia में fatigue होता है, skin pallor होता है, shortness of breath होता है, lightheadedness होता है, dizziness और fast heartbeat हो जाती है. ठीक है, हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में there is painful, हीमोफीलिया में पेनफुल कंडीशंस हो जाती हैं, कुछ भी प्रोलॉन्ग्ड हेडेक हो जाएगी, रिपीटेड वॉमिटिंग आ सकती है हीमोफीलिया में, स्लीपीनेसनेस या लेथार्जी रहती है, डबल विजन रहता है. ठीक है, और चौथा जो ऑप्शन है दैट इज़ जो सिम्टम दिए हुए हैं जैसे फटीग, वीकनेस एंड वेट लॉस ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस, पेशेंट में डेवलप जॉन्डिस. ठीक है, ये लिवर सिरोसिस के अंदर होता है. इट इज़ नॉट अ ब्लड डिस्क्रेजिया. जब हमारा पेशेंट जॉन्डिस डेवलप कर रहा है लेटर स्टेजेस में, तो वहाँ पे लिवर सिरोसिस के अंदर ये चीज़ देखी जाती है. ठीक है, बाकी फटीग, वीकनेस और वेट लॉस इज कॉमन, बट जॉन्डिस विल बी सीन इन लिवर सिरोसिस, नॉट इन ब्लड डिस्क्रेजियास. नेक्स्ट, द फाइबर्स ट्रांसफरिंग द वर्टिकल स्ट्रेस और फोर्सेस टू द बोन आर व्हाट फाइबर्स? जो वर्टिकल स्ट्रेस बेरिंग फाइबर्स होते हैं दे आर नोन एज ऑब्लिक फाइबर्स. Oblique fibers are most abundant fiber group in the periodontal ligament. They are extending from the cementum in the coronal direction obliquely to the alveolar bone. They resist the vertical and intrusive forces and thus bear a large part of vertical masticatory stresses and transfers them into the tension on alveolar bone. Next, a patient acquired pneumonia and it was found out that the source of infection is prolonged exposure to air conditioning. Which of the following organisms in air conditioners is responsible for it? तो आंसर है लेजियोनेला. लेजियोनेला एक ऑर्गेनिज्म होता है जो एयर कंडीशनर के अंदर होता है. ठीक है, द न्यूमोनिया दैट इज लेजियोनेयर्स डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम लेजियोनेला न्यूमोफिलिया. लेजियोनेला न्यूमोफिलिया एंड इट इज फाउंड इन द फॉल्टी एयर कंडीशनिंग यूनिट्स ऑफ लार्ज बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल्स या फिर होटल्स के अंदर भी ये चीज़ देखी जाती है. नेक्स्ट, द एग्जाम्पल ऑफ डायमॉर्फिक फंगाई इज व्हाट? 4 ऑप्शन दिए जिसमें से हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम इज अ डायमॉर्फिक फंगाई. Dimorphic fungi have organisms that have been seen to have the ability to switch between two morphologies. ठीक है, या तो वो yeast like morphology शो कर सकते हैं या hyphae like morphology शो करते हैं. इन दो morphology के बीच में switch कर सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे आता है ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस, Blastomyces dermatitis, Histoplasma capsulatum and Sporothrix schenckeii, SCHENCKII, Sporothrix schenckeii. Next, which cusp is smallest in maxillary second molar? Maxillary second molar में डिस्टोलिंगुअल cusp जो है वो सबसे छोटा होता है. Maxillary second molars consist of 4 large cusps. ठीक है, the largest is mesiopalatal,
मतलब मीजियोलिंगुअल लार्जेस्ट होगा, फॉलोड बाय मीजियोबक्कल, फॉलोड बाय डिस्टोपैलेटल, ठीक है, या फिर डिस्टोबक्कल बोल सकते हो। नेक्स्ट, विच कस्प ऑफ मैक्सिलरी सेकंड मोलर इज द स्मॉलेस्ट? तो स्मॉलेस्ट हमारे पास होता है डिस्टोलिंगुअल कस्प। द मैक्सिलरी सेकंड मोलर कस्प ऑफ हैविंग 4 कस्प, मैक्सिलरी सेकंड मोलर में 4 कस्प होते हैं। द लार्जेस्ट इज मीजियोपैलेटल, फॉलोड बाय मीजियोबक्कल, देन जो डिस्टोपैलेटल होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द कस्प। Next, a 23-year-old female reports with a deep lingual pit in relation to maxillary lateral incisor. Maxillary lateral incisor की relation में deep lingual pit है. On radiographic examination shown in the image, there appears to be a pear-shaped encroachment into enamel and dentine. Pear-shaped encroachment of this pit into enamel and dentine. तो डायग्नोसिस क्या बनेगा? देखो रेडियोग्राफ में भी एक पियर शेप्ड पिट दिखाई देगी आपको पल्प के साथ ही, तो इट इज हैविंग अ डायग्नोसिस ऑफ डेंस इनवैजिनेटस। जो प्राइमरी मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर्स होते हैं, दे आर द मोस्टली फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व टीथ इन द केसेस ऑफ डेंस इंडेंटे और डेंस इनवैजिनेटर्स, ठीक है। नाउ जो कि डेवलपमेंटल लिंगुअल पिट की तरह दिखाई देता है, रेडियोग्राफिकली इट इज रिकग्नाइज्ड एज अ पियर शेप्ड इन्वैजिनेशन ऑफ द इनामल एंड द डेंटिन विद अ ओपन नैरो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, on the surface of tooth that's closely approximating the pulp in its depth. Food debris may become packed in this area, which may result in resultant caries and infection of the pulp, occasionally even before the tooth has completely erupted. The more severe forms of dense indente may exhibit invagination that extends nearly to the apex of the root, and these present as a bizarre radiographic picture. Next, strain in Corynebacterium diphtheria. Which strain is used? स्टेन जो यूज़ किया जाता है दैट इज एल्बर्ट स्टेन, नेजर स्टेन एंड पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू स्टेन। तीनों स्टेन यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल स्टेन्स लाइक एल्बर्ट स्टेन, मैलेकाइट ग्रीन, टाउलिडीन ब्लू, नेजर स्टेन और पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू आर यूज फॉर स्टेनिंग ऑफ द bacilli. The bacilli looks green and metachromatic granules appear bluish black when Albert stain is used. They are non-capsulated, non-acid fast and non-motile bacteria. Corynebacterium diphtheria. They are non-capsulated, non-acid fast and non-motile bacteria. Next, mesial marginal developmental groove is seen in which tooth? Mesial marginal developmental groove. It is seen in maxillary first premolar. कहाँ देखा जाता है? maxillary first premolar के अंदर देखा जाता है। It is the most characteristic identifying feature of maxillary first premolar, जिसमें mesial marginal developmental groove होती है। ये मार्जिन है, ये मोलर, ये प्रीमोलर है हमारे पास। दिस ग्रूव, यहाँ पे ग्रूव बनी होगी इस साइड पे, मीजियल मार्जिनल डेवलपमेंटल ग्रूव विल बी सीन। नेक्स्ट, मीजियोलिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव इज सीन इन विच टूथ? मीजियोलिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर के अंदर दिखेगा, ठीक है। मैंडिबुलर के अंदर मीजियोलिंगुअल डेवलपमेंटल ग्रूव और मीजियल मार्जिनल डेवलपमेंटल ग्रूव मैक्सिलरी के अंदर। A characteristic of the lingual surface of the mandibular first premolar is the mesiolingual developmental groove. This groove acts as a line of demarcation between the mesiobuccal lobe and the lingual lobe and extends into the medial fossa of the occlusal surface. ठीक है। Now, mesiolingual developmental groove इसमें मिली हमें mandibular first premolar के अंदर। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है? buccal triangular ridge होती है पूरी, उसके साथ small rudimentary lingual cusp होता है। Next, a 45-year-old female with no relevant family history or medical history comes to the clinic. On examination, there is abundant plaque and there is calculus deposit throughout the mouth with deep pockets. ठीक है, deep pockets हैं और attachment loss जो है दो sides पे। Your diagnosis will be what? Our diagnosis will be chronic periodontitis. Chronic periodontitis, formerly known as adult periodontitis or chronic adult periodontitis, is most prevalent form of periodontitis. Although it is most frequently seen in adults, but in some cases that it can be present in children and adolescents in response to chronic plaque and calculus accumulation. It is defined as an inflammatory disease of supporting tissues of the teeth that's caused by microorganisms of specific group of resulting in progressive destruction of the periodontal ligament and alveolar bone with pocket formation or recession, or both could be there. There could be pocket formation along with the recession. It is an infectious disease in inflammation within the supporting tooth tissues of the teeth. Progressive attachment loss and bone loss is also seen in chronic periodontitis. Next, identify the non-scrapable white lesion and give its preventable agent. तो ये बेसिकली ल्यूकोप्लेकिया का एक इमेज दे रखा है।
ल्यूकोप्लेकिया के इमेज में आपको एक नॉन स्क्रेपेबल वाइट लीजन दिखाया गया है ऑन द बक्कल म्यूकोजा, ठीक है। ऑन द बक्कल म्यूकोजा देयर इज अ नॉन स्क्रेपेबल वाइट लीजन, ठीक है। सो इट इज़ ल्यूकोप्लेकिया, एंड ल्यूकोप्लेकिया अगर आप डायग्नोस कर रहे हो तो 13 सिस रेटिनोइक एसिड जो है वो यूज़ किया जाता है, दैट इज फॉर ट्रीटिंग ल्यूकोप्लेकिया। नॉन स्क्रेपेबल लीजन इज ल्यूकोप्लेकिया। कैंडिडा इज स्क्रेपेबल, lichen planus and vicum has vicum striae which does not visible in the lesion above, ठीक है। lichen planus में vicum striae दिखेंगे, vicum striae मतलब उसको खींचोगे तो वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा और ऐसे वो striae दिखाएगा, ठीक है। कैंडिडा स्क्रेपेबल होता है और नॉन स्क्रेपेबल लीजन जो है ल्यूकोप्लेकिया है इन ऑप्शंस में से, ठीक है। तो यहाँ पे 13 सिस रेटिनोइक एसिड यूज़ किया जाता है, दैट इज फाउंड टू बी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ओरल ल्यूकोप्लेकिया। रिमूवल ऑफ ल्यूकोप्लेकिया पैचेस यूजिंग अ स्केपल और अ लेजर और अ क्रायोप्रोब इज ऑल्सो डन। Recurrence are common and therefore follow-up should be done. Next question is, the dentist gave impression to a lab technician to pour the impression so that the impression could conduct electricity. The procedure is done to the impression before pouring is what? अगर हमें चाहिए कि हमारा impression जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, so we have to make it conducting or metallized. So the process is known as metallizing. Okay, it is not known as anoding, it is not known as whip mix, it is not known as casting, it is a metallizing method. ठीक है, metal dyes produced from electroplated impression material have moderately high strength, adequate hardness and excellent abrasion resistance. Detailed reproduction of line 4 micrometer or less in width is readily available on a resulting metal covered die when a non-aqueous elastomatic material is used. The first step in the procedure of metallizing is to treat the surface of impression material so that it conducts electricity. The process is referred to as metallizing. In this process, a thin layer of metal such as silver powder is deposited on the surface of impression material. Polysulfide rubber impressions are cleaned thoroughly and dried, and they are then metallized with a fine silver powder, although other metallizing agents can also be used. The silver powder result in superior surface of on the electroform die. An anode of pure silver, at least twice the size of the area to be planted or plated, is employed. And electroplating is carried out before approximately 10 hours. Electroplating जो है वो 10 घंटे पहले करी जाती है using 5 to 10 milliampere per centimeter square of cathode surface. ठीक है, कैथोड सरफेस यूज किया जाता है, एनोड सरफेस नहीं किया जाता, कैथोड सरफेस यूज किया जाता है, एंड द प्रोसेस इज मेटलाइजिंग. नेक्स्ट, द सूचर टेक्निक दैट इज यूज्ड व्हेन टिश्यूज आर लाइंग एट डिफरेंट डेप्थ एंड लेवल. जब डीप इंसिजन है हमारा, डिफरेंट डेप्थ और लेवल पे हमने सूचर देना है, तो हम कौन सा सूचर टेक्निक यूज़ करते हैं? वी गो फॉर वर्टिकल मैट्रेस टेक्निक. ठीक है, वर्टिकल मैट्रेस सूचर आर यूजफुल फॉर फोर्स्ड वुंड एजेस. ठीक है, फॉर फोर्स्ड वुंड एजेस एवर्शन एज वेल एज फॉर क्लोजिंग डीप सुपरफिशियल लेयर्स विद वन स्टिच. एक स्टिच के साथ कवर करने के लिए. द नीडल इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज बाइट is taken through other side of the bone. The direction of the needle is then reversed and smaller bite is taken in the incision. मतलब अगर हमारे पास ये एक इंसिजन है मान लो, ठीक है, तो हमारा जो सूचर होगा वो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जाएगा. सबसे पहले लार्ज बाइट लेंगे, ठीक, फिर स्मॉलर बाइट लेंगे, फिर स्मॉलर बाइट लाके यहाँ पे आके हम इसको क्लोज कर देंगे. दिस इज अ वर्टिकल मैट्रेस सूचर, जिसमें ये दो डेप्थ पे गया. जो बड़ी वाली है वो डीपर डेप्थ पे गई, और जो छोटी वाली बाइट जो हमने ऊपर से लेके आई वो कम डेप्थ पे गई. नेक्स्ट, द शेप ऑफ द टूथ इज डिटर्मिन्ड बाय विच ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर? शेप ऑफ द टूथ इज डिटर्मिन्ड बाय इनामल नॉट. इनामल नॉट सिग्नलिंग सेंटर for tooth morphogenesis. Earlier, a transient epithelial structure in the enamel organ known as enamel knot was recognized to play a central role in growth of the in controlling the growth and patterns of the tooth cusps. ठीक है, enamel knots consist of cells that do not divide but promote cell division of adjacent epithelial cells which form the cervical loop and the mesenchymal cells forming the dental papillae. Although a fully differentiated enamel knot can be identified only in the cap stage. किस स्टेज पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कैप स्टेज पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको. द फर्स्ट टाइम टू फॉर्म दिस स्ट्रक्चर begins with cessation of proliferation during the late bud stage at the tip of the epithelium starts to broaden buccolingually. जैसे जैसे जो टिप है वो buccolingually broaden करती जाती है, वैसे वैसे इनामल जो नॉट है वो गायब होता जाता है.
ठीक है. Now the development of enamel knot is regulated by signals derived from the mesenchyme and also during the stage at which the enamel knot forms. The potential is to induce tooth development that is residing in the mesenchyme. In first step, there is enamel knot stimulates the proliferation of epithelium surrounding the knot to make the cusp higher. वहाँ पे जो है cusp को higher बनाने के लिए enamel knot जो है वो proliferation को stimulate करता है. सेकेंड स्टेप में क्या होता है, enamel knot then produces factors that lead to cell death. ऐसे फैक्टर्स करवाता है जिससे सेल डेथ हो सके, ताकि उतना जितना प्रोलिफरेट हो गया उससे ज़्यादा प्रोलिफरेट ना करे. इन मल्टीकस्प टीथ वन और मोर सेकेंडरी इनामल नॉट्स डेवलप आफ्टर द प्राइमरी वन, ताकि डिफरेंट कस्प के लेवल पे डिफरेंट डिपोजिशन करा सके. ठीक है. Next, a tumor that is mistaken as acanthomatous ameloblastoma. There are islands of mature squamous epithelium without a peripheral palisaded layer. Epithelial islands show microcystic formation. Name the tumor. It is squamous odontogenic tumor. ठीक है. स्क्वैमस ओडोंटोजेनिक ट्यूमर हमारा जो है वो एक्यांथोमेटस एमिलोब्लास्टोमा की तरह दिखता है. वहाँ पे आइलैंड्स ऑफ मैच्योर्ड स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं विदाउट पेरिफेरल पैलिसेडिंग लेयर ऑफ एपिथेलियल आइलैंड्स शोइंग माइक्रोसिस्टिक फॉर्मेशन. ठीक है. माइक्रोसिस्टिक फॉर्मेशन दिखाई देती है, मतलब ऐसे ऐसे पेरिफेरल बना होगा, उसमें बीच में सिस्ट बना होगा, पेरिफेरल बना होगा, बीच में सिस्ट बना होगा. ये होता है इन स्क्वैमस ओडोंटोजेनिक ट्यूमर. नेक्स्ट एक हिस्टोलॉजिकल स्लाइड दी हुई है जिसमें कि बोला है कि सिस्टिक स्पेसेस आर फिल्ड विद होमोजीनियस फ्लूइड. Cystic spaces are filled with homogeneous fluid and circumscribed by double row of oncocytes having stroma filled with lymphocytes. Oncocytes वो हैं और stroma जो है वो filled है with lymphocytes. Which is this tumor? It is Warthin's tumor. ठीक है. Warthin's tumors के कैरेक्टर हैं. नेक्स्ट सिंपली ये हिस्टोलॉजिकल स्लाइड दी हुई है और पूछा है कि क्या चीज़ है, व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. इट इज़ ऑफ लिम्फ एंजियोमा. ठीक है. लिम्फ एंजियोमा में, कैवर्नस लिम्फ एंजियोमा में न्यूमरस डायलेटेड लिम्फैटिक्स होते हैं. दीज न्यूमरस आर डायलेटेड लिम्फैटिक्स. ओके. एंड अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स विद फ्लैटेंड ओकेजनली प्लम्प न्यूक्लियाई कंटेनिंग लिम्फ. सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स कंटेनिंग फ्लैटेंड प्लम्प न्यूक्लियाई कंटेनिंग लिम्फ. अगर ऐसा डायग्राम आता है तो दिस इज लिम्फ एंजियोमा. रेयर वेरिएंट ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा implicated due to human papilloma virus, traumatic irritation, etc. There is an endophytic growth consisting of interconnecting network of keratin-filled crypts extending down to connective tissues. Keratin-filled crypts extending down to connective tissue and is a rare variant of squamous cell carcinoma. तो इसका जो वेरिएंट होगा जिसका नाम है कार्सिनोमा क्यूनिक्यूलेटम. इसको क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा क्यूनिक्यूलेटम होता है. हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स में कुछ समझ नहीं आएगा देख के. ठीक है. यू हैव टू गो विद कैरेक्टरिस्टिक्स की रेयर वेरिएंट है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का, इम्प्लीकेटेड ड्यू टू ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ट्रॉमेटिक इरिटेशन, एंडोफिटिक ग्रोथ हो रही है कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क ऑफ कैरेटिन फिल्ड क्रिप्ट्स एक्सटेंडिंग डाउन इनटू कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. सो दिस इज अ कार्सिनोमा क्यूनिक्यूलेटम. नेक्स्ट, वर्क हार्डनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द हार्डनेस ऑफ मेटल बाय व्हाट? बाय कोल्ड वर्किंग. ठीक है. आप कोल्ड वर्किंग उसके ऊपर हथौड़े मार रहे हो, उसके ऊपर स्ट्रेस दे रहे हो, दैट इज नोन एज कोल्ड वर्किंग. उससे वर्क हार्डनिंग कर जाती है, मतलब कि जो मेटल है उसको हार्ड किया जाता है. ठीक है. द रिजल्ट ऑफ कोल्ड वर्किंग इज कॉल्ड एज वर्क हार्डनिंग. द प्रोसेस डिस्क्राइब्स द ऑल्टरेशन एंड इंक्रीज इन द डिसलोकेशंस विद इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. The result of work hardening is increase in tensile strength, increase in yield point, and increase in the hardness of material. Next, Knoop hardness number of dental amalgam is how much? Knoop hardness number of dental amalgam is 110. All right. The Knoop hardness test is an alternative to Vickers hardness test in micro hardness testing range, and it can be performed in the same universal or micro hardness testing machines. It is mainly used to overcome the cracking, brittle materials. क्रैकिंग इन ब्रिटल मटेरियल्स को चेक करने के लिए हम नूप हार्डनेस नंबर चेक करते हैं, एज वेल एज टू फैसिलिटेट द हार्डनेस टेस्टिंग इन थिन लेयर्स. उसमें भी नूप हार्डनेस नंबर चेक करते हैं. ठीक है. हार्डनेस में मो हार्डनेस नंबर होता है दैट इज़ 5 to 8. मो हार्डनेस नंबर होता है 5 to 8. नॉर्मली जो हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं, डायमंड के लिए मो हार्डनेस नंबर जो है वो 10 होता है. डायमंड के लिए मो हार्डनेस नंबर इज 10. अगली बात आती है नूप हार्डनेस नंबर की. नूप हार्डनेस नंबर, ठीक है, 300 तक की रेंज में जाता है. डेंटीन का होता है 65, प्योर गोल्ड का होता है 32, अमलगम का होता है 90, कॉम्पोजिट का होता है 60. दैट्स मोर देन डेंटीन.
ठीक है। पेरिफेरल एनामल इज हार्डर दैन डीपर एनामल, ये चीज़ भी देखनी होती है। दैट्स ऑल्सो चेक बाय नूप हार्डनेस नंबर। नेक्स्ट, फॉर एन आइडियल आइसोट्रॉपिक मटेरियल ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम द पॉइजन्स रेशियो इज व्हाट। आइडियल आइसोट्रॉपिक मटेरियल ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम, उसमें पॉइजन्स रेशियो होती है 0.5। पॉइजन रेशियो मेजर्स द डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। अगर हमारा ये मटेरियल है और हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कितना डिफॉर्म हमारा मटेरियल करेगा, उसको हम कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो ऑफ अ स्टेबल आइसोट्रॉपिक लीनियर इलास्टिक मटेरियल मस्ट बी बिटवीन -1.0 एंड +0.5। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -1.0 से +0.5 तक, ठीक है। बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ यंग्स मॉडुलस, द shear modulus and the bulk modulus to have positive values, most materials have Poisson's ratio values between 0.0 and 0.5, ठीक है। ज़्यादातर मटेरियल्स की जो वैल्यू होगी पॉइजन्स रेशियो की वो 0.0 से 0.5 के बीच में होगी। नेक्स्ट, इंट्राओरल एडिशन was first reported by who? Intraoral adhesion was reported by first person जो था, it was डॉक्टर माइकल बोनोक्योर, ठीक है। इंट्राओरल एडिशन फर्स्ट रिपोर्टेड बाय डॉक्टर माइकल बोनोक्योर, ठीक है, बोनोक्योर। नेक्स्ट, आइडियल टेपर फॉर कास्ट क्राउन टूथ प्रिपरेशन बिटवीन एक्सियल सर्फेसेस इज व्हाट। आइडियल टेपर फॉर कास्ट क्राउन टूथ प्रिपरेशन ऑन द एक्सियल सर्फेसेस, ये जो साइड के जो एंगल बनता है दैट इज 3 डिग्री वन साइड, 3 डिग्री अदर साइड, दैट इज टोटल इज 6 डिग्रीज टेपर, ठीक है, दैट इज आइडियल। अगली बात आती है शैम्फर फिनिश लाइन मार्जिन इज इंडिकेटेड वेयर। शैम्फर फिनिश लाइन मार्जिन जो होता है दैट इज इंडिकेटेड इन ऑल मेटल क्राउन्स एंड लिंगुअल मार्जिन ऑफ पोर्सलेन फ्यूज्ड मेटल क्राउन्स। जहाँ पे भी मेटल लग रहा है हमारा, ठीक है, जहाँ पे भी मेटल की लाइनिंग आएगी वहाँ पर हम शैम्फर फिनिश लाइन जो है वो देते हैं, ठीक। जैसे कि ऑल मेटल क्राउन में दे सकते हैं, लिंगुअल मार्जिन ऑफ पोर्सलेन फ्यूज टू मेटल क्राउन में दे सकते हैं। शैम्फर, इट्स इंडिकेशंस आर कास्ट मेटल क्राउन्स एंड मेटल ओनली पोर्शन ऑफ द PFM क्राउन्स, ठीक है। शैम्फर ऐसा सा एंगल होता है, ऐसा सा एंगल, ठीक है, दिस इज नोन एज शैम्फर। जो ऐसा एंगल बनेगा दिस इज नोन एज शैम्फर, ठीक है। नाउ इट इज डिस्टिंक्ट एंड इजीली कैन बी आइडेंटिफाइड, और ये स्ट्रेस को कम कर देता है, लीस्ट स्ट्रेस वाली जोन में हमें देना होता है। और कौन सा बर यूज़ करते हैं, राउंड एंड टेपर्ड डायमंड बर, या फिर हाफ ऑफ द टिप ऑफ डायमंड बर कुड बी यूज। राउंड एंड टेपर्ड डायमंड बर यूज़ कर सकते हैं या फिर हाफ ऑफ द टिप ऑफ द डायमंड बर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, लॉस्ट सॉल्ट टेक्निक इज यूज टू फैब्रिकेट व्हाट। लॉस्ट सॉल्ट टेक्निक इज यूज टू फैब्रिकेट वर्जीनिया ब्रिज, ठीक है, इट वॉज यूज टू फैब्रिकेट वर्जीनिया ब्रिज, ठीक है। वर्जीनिया ब्रिज में पार्टिकल रफंड रिटेनर लॉस सॉल्ट टेक्निक यूज़ की जाती है। 2 विंग्स होंगे, बीच में हमारे पास जो हमारा क्राउन जो भी है हमने बनाया हुआ टूथ, और ये 2 विंग्स जो होंगे वो पार्टिकल रफनर को यूज़ करके बाकी के 2 दांतों को एज अ सपोर्ट यूज़ करके उनके ऊपर बाइंड करेंगे, और बीच में ही हमारा तीसरा नकली दांत जो है वो लगेगा, ठीक है, दैट इज़ वर्जीनिया ब्रिज। मैरीलैंड ब्रिज अगला होता है, ठीक है, मैरीलैंड ब्रिज नया है। मैरीलैंड ब्रिज, इसमें रिटेंशन जो होगी वो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोपोरोसिटीज होती हैं दैट इज प्रेजेंट इन द टिश्यू सरफेस ऑफ द रिटेनर। रिटेनर के ही टिश्यू सरफेस के ऊपर हम माइक्रोपोरोसिटीज को डेवलप कर देते हैं बाय एयर अब्रेडिंग द मेटल सरफेस, जैसे भी करना है, ठीक है। लेकिन इसमें पार्टिकल रफंड रिटेनर होता है, मतलब ऐसे ऐसे जाली बनी होती है एक हिसाब से जिसमें कि पार्टिकल्स फंस जाते हैं और ये इजीली स्टिक कर जाता है। लेकिन जो मैरीलैंड ब्रिज होता है उसमें पूरा वो स्मूथ होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है, ठीक है, तो उसमें माइक्रोपोरोसिटी बनानी पड़ती है हमको। लेकिन क्वेश्चन के लिए हमने क्या याद रखना है कि लॉस्ट सॉल्ट टेक्निक इट इज यूज्ड फॉर वर्जीनिया ब्रिज ओनली। नेक्स्ट, चोकिंग ऑफ अकर्स विद एप्लीकेशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट। चोकिंग ऑफ इफेक्ट जो होता है सोडियम फ्लोराइड का जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड के बनने की वजह से होता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सोडियम फ्लोराइड सॉल्यूशन, इट reacts with hydroxyapatite crystals to form calcium fluoride. Due to high concentration of fluoride, that is 2% in sodium fluoride, to which the solubility product of calcium fluoride gets excluded fast, an initial reaction is followed by drastic reduction in its rate and the phenomena is called as choking off. देखो जो ऊपर का जितना भी हाइड्रोक्सीएपेटाइट है वो कंज्यूम हो जा रहा है, उसका कैल्शियम फ्लोराइड बन गया। इसके नीचे वाली लेयर जो है वो फ्लोराइड अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि ऊपर वाला लेयर जो है वो पूरा चोक ऑफ हो गया, वहाँ पूरा कैल्शियम फ्लोराइड बन गया, तो अब फर्दर अपटेक नहीं हो पाएगा,
ठीक है। तो फर्दर कैल्शियम फ्लोराइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सी एपेटाइट टू फॉर्म फ्लोरिडेटेड हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अब ये जो कैल्शियम फ्लोराइड है ये रिएक्ट करता रहता है अंदर की तरफ बाय हाइड्रोक्सी एपेटाइट विद हाइड्रोक्सी एपेटाइट, जिससे कि फ्लोरिडेटेड हाइड्रोक्सी एपेटाइट बनता रहता है। नेक्स्ट, द घोस्ट सेल, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द गॉर्लिन सिस्ट आर फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। घोस्ट सेल आपके कंपाउंड ओडोंटोम के अंदर दिखते हैं, अमीलोब्लास्टिक फाइब्रो ओडोंटोमा के अंदर दिखते हैं, क्रेनियोफेरेंजियोमा के अंदर दिखते हैं। इन तीनों के अंदर घोस्ट सेल दिखाई देंगे, लेकिन अमीलोब्लास्टिक ओडोंटोमा के अंदर, जो हमारा चौथा ऑप्शन है, उसके अंदर नहीं दिखाई देंगे। नेक्स्ट, इन वॉर्थिन्स ट्यूमर ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट व्हाट। वॉर्थिन्स ट्यूमर जो होता है वो सुपरफिशियल होता है। इट इज़ अ डिजीज ऑफ मैन। वॉर्थिन ट्यूमर इज अ डिजीज ऑफ मैन एंड देयर इज अ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी इन दीज पेशेंट्स। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज है ये वॉर्थिन्स ट्यूमर, ठीक है, बट इट इज़ नॉट पेनफुल। जो चौथा ऑप्शन गलत है, दैट इज वहाँ लिखे कि पेन होती है, बट द वॉर्थिन ट्यूमर इज नॉन पेनफुल। ओके, एलेग्रा proposed hypersensitivity is the main cause of Warthin tumor histogenesis. The cascade of events is suggested by him was oxyphilic metaplasia of striated ducts followed by papillary formations with secretion leading to cyst formation. Papillary formation with secretions leading to cyst formation, जो कि Warthin tumor में होता है। Warthin tumor papillary cyst adenoma lymphomatosum 1 बोला जाता है। वॉर्थिन ट्यूमर का दूसरा नाम क्या है? पैपिलरी सिस्ट एडिनोमा लिम्फोमेटोसम 1। इट अकर्स ओनली इन द पैरोटिड ग्लैंड। सेकेंड मोस्ट कॉमन बेनाइन पैरोटिड ट्यूमर वॉर्थिन ट्यूमर, मे बी यूनिलेटरल और बायलेटरल, मे अकर एज सिंपल मल्टीपल लीजन, ईदर सिंक्रोनसली और मेटाक्रोनसली, ठीक है। मोर कॉमन इन मेल्स, दैट इज 26:1 की रेशो होती है, 26:1 की रेशो होती है, इतनी ज़्यादा। इट इज़ मोर कॉमन इन स्मोकर्स, इट अकर्स एज पेनलेस, sometimes fluctuant mass in the parotid gland. Next, rural health scheme was introduced by who? Rural health scheme was introduced by Srivastava's committee. ठीक है, किसने किया था? श्रीवास्तवा कमेटी। नेक्स्ट, कटनर ट्यूमर प्राइमरली अफेक्ट्स व्हाट? कटनर ट्यूमर, KUTTNER ट्यूमर, इट अफेक्ट्स प्राइमरली द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड को अफेक्ट करता है। कटनर ट्यूमर known descriptively as chronic sclerosing sialadenitis. It is a chronic inflammatory disease of salivary gland. Clinically, it produces a firm swelling of the glands and may be difficult to distinguish from the neoplasia. Kutner tumor is a rare disease which mimics the malignancy, and there is no enough report or evidence to support any diagnostic means that could help in differential diagnosis of this benign condition. Given high rate of malignancy in firm painless lesions of submandibular gland, surgical excision is often advocated and the Kutner tumor is diagnosed by a histopathologist. ठीक है, पूरा का पूरा जो ट्यूमर है उसी को, जो बेनाइन ट्यूमर है उसको निकाल दिया जाता है, एक्सीजन कर दिया जाता है उसका कटनर ट्यूमर में, ठीक है। दैट इज अ प्राइमरी ट्यूमर अफेक्टिंग सबमैंडिबुलर ग्लैंड। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पेरिअपेकल सर्जरीज मैक्सिमम hemostasis is obtained by depositing anesthetic where? जब पेरिपाइकल सर्जरी कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम हीमोस्टेसिस इज ऑब्टेन्ड बाय डिपॉजिटिंग द एनेस्थेटिक इनटू द एल्वियोलर म्यूकोसा, ठीक है। अटैच जिंजाइवा में डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैपिला में डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी में डाल देंगे तो चलो कोई ना कोई फर्क पड़ ही जाएगा, बट इनटू द एल्वियोलर म्यूकोसा इज द राइट आंसर, ताकि हीमोस्टेसिस जो है उसे ईजिली अटेन किया जा सके। Next question is, what is Care Index? Care Index is defined as the index, that's a dental epidemiological measure, जिसमें कि F divided by DMF into 100 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। F में आता है नंबर ऑफ फिल टीथ दैट हैव बीन ट्रीटेड और रेस्टोरेटेड, और DMF में हमें पता है डिकेड मिसिंग या फिल टीथ जो भी हमारा जिनको हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो आ जाएगा into 100. दिस इज नोन एज अ केयर्स इंडेक्स, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस द प्रपोर्शन ऑफ केरीज एक्सपीरियंस दैट अ पर्सन हैज रिसीव्ड and the restorative care the person has received. अब इसमें नंबर ऑफ फिल्ड टीथ के बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि हमारा जो यूटिलाइजेशन ऑफ डेंटल सर्विसेज एंड ट्रीटमेंट कवरेज जो है वो कितना बेटर पेशेंट ले पा रहा है,